to occupy their seats. A very warm greetings to all. Ladies and gentlemen, now we are having with us Dr. Vivek Nanoti, Director, Honorable Dr. Vivek Nanoti, Director, Engineering, LTJSS Nagpur, Honorable Dr. C.M. Jadhav, Principal, Mauli Group of Institution, College of Engineering and Technology, Shega, respected Dr. A.M. Shende, Principal, PJLC and Seminar Chairperson, IQAC Coordinator and Convener of the Seminar, Dr. A.D. Kadam, Organizing Secretary of the event, Dr. Ajit Harde and Mr. Ashish Mohar, Excellencies, and galaxy of intellectuals, delegates, and all the invited guests and participants. I, Dr. Shruti, once again welcome you all for this final technical session of today's program. Ladies and gentlemen, we have already grabbed immense insight of some important aspects of NAP 2020 through our previous brainstorming sessions. And now, I feel very honored and proud that to mention here, we are having a very profound persona for this final session, Dr. Nanoti sir. Sir is nothing but a not only dynamic person, but he is a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge. So, at this moment, I humbly request Dr. Abhay Shende, Principal, Priyadarshini JL College of Engineering and Seminar Chairperson, to offer courteous welcome to Dr. Vivek Nanoti sir. I also request sir to felicitate sir with a shawl and shriphar as an essence of honor and memento as a token of remembrance. Thank you so much, sir. Friends, there are two ways of spreading light: to be a candle or a bearer that reflects it. And that is what Dr. Nanoti sir is doing in the field of education. And today, I am privileged enough to put forward some glimpses of his introduction. Dr. Nanoti sir is presently adorning very prestigious post of Director Engineering, LTGSS, Priyadarshini Group of Institution, Nagpur, Member Senate, RTM Nagpur University from 2017 to 2022, and a NAC assessor. He did his master's in physics in the year 1991 and doctorate in the year of 1996. Sir has very rich teaching and administrative experience of 30 years. In this journey, he has headed various prestigious posts like Principal, Priyadarshini Institute of Engineering and Technology, Nagpur from 2014 to 21, Professor and Dean Academic, first year, LTJSS Group, Indian Society, Sir is National Executive Council member in Indian Society of Technical Education in the year 2012 to 14, SMC, IST Maharashtra Goa section from 2006 to 2008, editor, IST Maharashtra Goa section, newsletter 2003 to 2011, secretary cum treasurer, IST Maharashtra Goa section from 2003 to 5 and 2009 to 11. Sir has awarded with various awards like National Best Teacher Award, Most Promising Engineering College Teacher 2005, Bharat Jyoti Award for Excellency in Education and Research 2012, Outstanding Academic Leader for 2019 by CEGR. While talking about contribution in research, Sir did his doctoral work under sponsorship of Department of Atomic Engineering at BAG, Mumbai. He has contributed in total 140 research papers, 62 papers in national international journals, and 78 papers in national and international conferences. He has coordinator of many IST, NITTR, Wipro STTPs for faculty, convener of many national conferences, attended over 50 professional conferences in India and abroad, guiding PhD student. Sir has 12 awarded students and 1 student has submitted.
His area of interest, material science, especially nanomagnetic material, soft ferrites, hexaferrites, etc. He worked as an editor-in-chief for International Journal of Knowledge Engineering. Sir has professional membership such as Indian Society Congress Association, Indian Society for Technical Education, Indian Association of Physics Teacher, Material Research Society of India, STAMI, IEEE. Sir's other achievements, Sir has visited many countries like Scotland, England, Israel, Germany, Portugal, France, Belgium, Netherlands, Malaysia, Singapore, Poland, Dubai, Moscow, etc. for academic meetings and conferences. Headed SLICE project at PIT, headed Gene Movement project worth rupees 21 lakh, Erasmus Plus funded, head Green Economy project with rupees 54 lakh, which is also Ramas Plus funded. Best Section Award of the Nation as a Secretary cum Treasurer IST Maharashtra Goa Section 2003 and 2005. Many Best Award in national and international conferences. Book published, Practical Applied Physics. Sir has delivered more than 3,000 guest lectures on communication skill, nanomaterials, research methodology, pedology, teaching, and rewarding career. Vision 2020, lifelong learning, goal setting, stress management, education technology, and the list is very long. Sir has provided corporate training at many reputed firms, and all firms are really very reputed like Mahindra & Mahindra, SBI Life Insurance, Samsung, Vidarbha Konkan Gramin Bank, Western Coalfield Limited, Career Beacon, Robocart, Markship, and so many reputed firms. During pandemic, Sir has contributed very much for his society. Sir has delivered 350 plus webinar in last 18 months only, and participants were 40,000 above. And that is from different countries, 26 countries actually, and 30 plus cities in India, and 55 different topics he has delivered for. Today, actually achievements are many more. List is very long and loaded with such a big achievements. So I'll make stop here, and today Sir is going to talk about opportunity and challenges in implementing NEP 2020 in higher education institutions. So ladies and gentlemen, without delaying, I would like to take pleasure to invite Dr. Nanoti sir. Please sir. Yes, please. Of course, sir. It is not for you. Fine. Asil to chalel. Very good afternoon to all of you, and post lunch I can understand आपकी परिस्थिति का पूरा मेरे को and lunch starts working instead of we start working, lunch starts working on us. So but anyways, I'll see to it that what sir has covered, good that I could come early, and then I'll not repeat few of this thing. हाँ ये कर लो. Hello. Yeah. So it is about like you have been discussing. I think मैंने morning भी थोड़ा सा अभी online जो YouTube था वो देखा. I could understand the the points our honorable chairman sir has put forth. I mean, he's always extremely relevant, updated, and we cannot expect the points he will touch upon. And then he gave a quite quality time here. I came to know so. Fine, thank you so much, madam. Thank you, Dr. Abhay Shende sir, for inviting me here for one of my topic which is very close to my heart, that is NEP. NEP when started, I remember the very first draft was introduced, and I just downloaded it. It was for many number of pages, and then we started studying it then. And then they said, no, the improvements are going on, इसमें और improvement हो जाएंगे, and then finally जो 5.5 साल लगे 2015 से 2020, so it was 5 years painful exercise. Over 3 lakh suggestions and feedbacks were taken, so much of it, and then finally document was कितने का बना 66 pages. It is just 66 pages, and if still listening to such sessions has a limited scope, but if you actually go through that original 66 page document, that would really change your perspective towards
providing education to this next generation. We are education providers, we are mentors, we are gurus. So अगर हमको अगली जनरेशन को कुछ देना है ना, तो हमको बदलना बहुत ही जरूरी है. So सर की आखिरी स्लाइड, पहली स्लाइड है मेरे लिए. We need to change. It is only change by which we can survive in this world. It is very, very difficult. Otherwise, traditional teaching, learning is so difficult. So I am not, I hope you are ready. And then the problems, yes. We know education at every point of grade. Schools, nursery में पूछो, parents को पूछो problem, teachers को पूछो problem, management को पूछो problem. So nursery से लेके doctorate, PhD, wherever you go, you will always find these number of problems. I have listed very few. Why so much of brain drain? Why so many people want? जिसके भी पास graduation के बाद 20 लाख रुपए है तो वो सिंगापुर भाग जाता है. जिसके parent थोड़े richer है या बच्चा रिस्क ज़्यादा लेता तो वो 50 लाख है तो वो MS के लिए US चले जाता है. बीच में थोड़े 35 लाख वाले सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी को कोई GRE नहीं चाहिए, किसी को कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उनको पैसे चाहिए बस. 35 लाख हमको दे दो, हम मैनेजमेंट को किकबैक 5 लाख दे देंगे. बट इन दैट प्रोसेस आर वी प्लेइंग विद द करियर ऑफ स्टूडेंट्स? ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है? देयर आर ओनली फ्यू लिस्टेड यूनिवर्सिटीज इन US, इन UK एंड इन यूरोप, and 1 or 2 in Singapore and Malaysia. That's all. If you are getting an admission into these branded institutions, visionary institutions, then and then it works. Otherwise, it has no meaning. The questions will remain there. हजारों बच्चे MS करते हैं, इंडिया में आके नौकरी ढूंढ रहे, 50 लाख वसूल करने में कितने साल लग जाएंगे? Please, so why such race? Why such race? Why choice base is not there? Why physics cannot be with music? Why? So many questions. We have already decided. Now, my focus is, what I feel is, सब कुछ हो सकता है. I have pasted, cut paste, ये पहली जो येलो वाले हैं ना, बस this is the motto of entire NEP. What is that? It says that recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. सबसे important क्या है? Each student. एक क्लास का नहीं करना है मेरे को. एक क्लास है, brilliant बच्चों का क्लास है, class of 60, and they all are 9 pointers. So what? And they all graduated, they all got placed. So what? That doesn't mean that they have learned. That doesn't ensure their education. That doesn't ensure their competencies, their skills. कुछ भी इंश्योर नहीं होता, बिकॉज असेसमेंट पैटर्न इशू है. सर के इसमें चैप्टर में एक स्लाइड थी असेसमेंट, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट असेसमेंट इज सो पुअर इन दिस कंट्री कि कुछ भी कर लो आप. पैंडेमिक हो गए तो सारे बच्चे 10 पॉइंटर पे चले गए. जो बच्चा पास ही नहीं हो रहा था कभी, जिसको बैक है पिछले 3 साल से, वो बच्चा 9 पॉइंटर. और कई बच्चे तो 10 पॉइंटर पे पहुंच गए थे लेकिन फॉर्म तक नहीं भरा. तो इस लेवल का इस लेवल की अगर बच्चों की अवेयरनेस है, इस लेवल का बच्चों का एक्सपेक्टेशन है हमसे, इस लेवल की तैयारी है, तो इट इज सो डिफिकल्ट टेल यू. सो व्हाट टू डू? रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट. हर एक बच्चे का चॉइस, his favorite things, his favorite subject, his inclination of mind, his favorite hobbies. Hobbies will play a very vital role because hobby comes from within. So hobbies will play a very vital role in shaping your careers, dear teachers. हम उसको ही बाजू रख देते. क्या गिटार विटार बजाता वो कोई मतलब नहीं, पहले तेरे 3 बैक है. You first get 9 pointer in this first time, then गिटार ऊपर के कबर्ड में डाल दे. No, it is not like that. That keeping him away from his hobbies is a criminal activity. You cannot do that. Keeping him away from his own competencies, his own inclinations, like sir say cooking. Yes, cooking gives him pleasure. Cooking can give him a part-time or a full-time profession. Cooking can give him name, fame, everything. और उसी को हम रोक रहे. क्यों? क्योंकि उसने BE में एडमिशन लिया है. So what? If he has taken admission into BE, BSc, BCom, how does it matter? ऐसी कौन सी डिग्री के मैचिंग प्रोफेशनल अभी जो इतने फोटो दिखाए, ये कोई उस डिग्री के प्रोफेशनल मैचिंग लोग है क्या? नहीं है. It is because they love their job. It is because they love that job, and that is sufficient. That is enough to succeed in your life by sensitizing teachers as well as parents to promote students, holistic development of students. अब बस इतना ही हम कर ले. अब मैं ये देख रहा था कि देखो there are hundreds, we keep on watching. यूनिवर्सिटी क्लस्टर का परसों आ गया GR, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, उसका फ्रेश GR स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, सब कुछ आएगा. But it is you and me who have to change. We can implement. Can we do something irrespective of what principal says, irrespective of what vice chancellor decides, irrespective of what
what government and central government and CBSE and UGC and AICTE merge करने के बाद भी यही बोलने वाले हैं. अभी merge नहीं है तब भी यही बोल रहे हैं. हर एक इंडिविजुअल बच्चे की ग्रोथ हो जाए, हर एक के लिए इंडिविजुअल बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए वो 100 बच्चे हैं, पर उस माँ बाप के लिए वो एक ही बच्चा है. उस क्लास के लिए अगर वो बच्चा सुसाइड कर ले, अगर वो बच्चा फेल हो जाए ना, तो जवाबदारी टीचर की है, ना कि बच्चे की है. इतना सेंसिटाइजेशन अगर टीचर्स में क्रिएट किया जाए, सेंसिटाइजिंग टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट. मॉरल्स एंड एथिक्स का भी मैं बताऊंगा, बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माय सेशन फॉर 45 मिनट्स, एंड द पॉइंट ओनली आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन इट कि ठीक है, जो भी पॉलिसी आ रही, एनईपी बहुत अच्छी है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन इज सो अमेजिंग, एंड दैट इज माय टेक होम. That every line is best, every line is worth for my student, every line is useful to my students to make them career shining. बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है. तो उतना काफ़ी है तो उसको करना क्या है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है, ये इतना करने के बाद क्या होने वाला है, 360 डिग्री डेवलपमेंट. ये इतना शब्द इतना बोरिंग हो गया है, इसका मीनिंग ही नहीं समझता. 360 डिग्री छोड़ो, 180 में कर लेते हो. 180 डिग्री में हो जाता है क्या? इट्स अ बिग स्पैन. इफ यू से 180 डिग्री डेवलपमेंट, you cannot, we are focusing them into 10 to 20 degrees, that's it. If you really feel like 360 degree क्या होता है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर कितना difficult होगा. 360 will cover its health, 360 degree will cover its morals, its ethics, its intelligence, its emotional quotient, its motivation, its inspirations, its time bound, its time management. अरे कितनी चीजें, list is like 100 things. ये सारी 100 चीजों को अगर हम दिल से तवज्जो देके उसको एक निर्धारित समय के अंदर उसको ना ढाल दे, तो खत्म है ये. 360 के 10 डिग्री आप डेवलप नहीं कर सकते बच्चे का. और जो रूटीन जो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी बोल रही है, वो तो 5% कर रही है. 5 डिग्री डेवलपमेंट है हमारी, बस लेट अस एक्सेप्ट दैट. एक बच्चे को सक्सेस करने के लिए 360 क्या है मालूम नहीं, वॉट एवर. 360 में मेरे को 200-300 तो आइटम मेरे को ही दिख रहे. असली 360 जिसने वर्ड यूज किया होगा उसके लिए जो भी होगा फाइन, बट ये इतना करने के लिए हम तो 5-10% कर दे, 1 डिग्री देते उसको बस. वो डिग्री उसको चपरासी बना सकती, डिग्री उसको सुसाइड करा सकती, वो डिग्री लेके जिंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रह सकता, चोर बन सकता, किराने की दुकान डाल सकता, पेपर बेच सकता. डिग्री क्या है, क्या किया उसके डिग्री में? इट हैज नो पावर अनलेस यू हैव एम्पावर्ड द इंडिविजुअल. द ऑल गेम इज अबाउट इंडिविजुअल ग्रोथ. और फिर वो कुछ भी कर ले, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. सो सेंसिटाइजिंग देम, मेकिंग देम मोस्ट एम्प्लॉयबल एंड एंटरप्राइजिंग, मॉरली, इथिकली, इमोशनली स्टेबल, पैट्रियोटिक स्टूडेंट्स. मॉरली, इथिकली, इमोशनली एंड पैट्रियोटिक, सो दैट ब्रेन ड्रेन विल बी लेस. आई वॉज टॉकिंग टू शशिकांत चौधरी सर, आए थे, यू नो शशिकांत चौधरी सर, वन ऑफ द एंजल बिगेस्ट IT giant from Nagpur. He said, माझ्या मुलाला अमेरिकेत पाठवलं नाही, मुळीच नाही. जबकि he flies US every now and then. He has got around 28 startups he is funding, and he said कि it is stupid of going to US for at least IT. और लोग क्या बोलते, IT क्यों किया, US जाना है. शशिकांत चौधरी सर का बहुत क्लैरिटी के साथ ये, अरे 50-60 लाख 70-75 लाख तक तो पैकेज इंडिया में मिल रहा है. 75 लाख बेंगलोर में बैठ के जो आदमी की लाइफस्टाइल रहेंगी, वो 1 करोड़ लेके यूएस में थोड़ी रहेंगी. वो तो कुछ भी नहीं रहेंगी. स्ट्रेस के अंदर उसको 10 साल पहले बीपी और डायबिटीज हो जाता है. सो व्हाई, सो फॉर आईटी ही सेज लेट अस नॉट मूव, नॉट इवन फॉर एमएस एंड नॉट इवन फॉर जॉब्स. कोई जरूरत नहीं फॉरेन जाने की, क्योंकि उतना पैसा तो हम यहीं पे चार्ज कर सकते. हम उनकी इकोनॉमी रन कर रहे हैं. यूएस हमारे भरोसे चल रहा है, हम उनकी इकोनॉमी रन कर रहे हैं, हम यूके की इकोनॉमी रन कर रहे हैं, हम उनकी बैंक का हर एक सिंगल लास्ट एम्प्लॉय इज इंडियन. So we are running there, we should keep our own terms. ये मैं नागपुर में बैठ के काम करूंगा, मैं 6 घंटे काम करूंगा, मजबूरी उनकी है क्योंकि उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है. So we need to be confident. हमारे लोग वहां जाके स्लेव बन जाते और काम करते, बोले 12 घंटे की था, मेरे को आज 18 घंटे बिठा डाला. क्यों बेटा? We are governing, we are their assets. They are not working, यार, they are enjoying. I work so much into European countries. अभी तक मतलब कितनी ट्रिप्स हो गई, you will not believe the kind of वर्क कल्चर यूरोपियंस हैव. मंडे को शुरू करते, थर्सडे आफ्टरनून से वीकेंड की बातें. अभी वीकेंड कहाँ जाना है, वहाँ समुंदर है, वहाँ ये करना है, वहाँ पार्टी करना है, वहाँ नाइट लाइफ ऐसा है. थर्सडे दोपहर से पढ़ा मैंने काम बंद. जैसा मैं 2 वीक्स कोर्स करता हूँ वहाँ पे, जैसे जर्मनी में मैंने क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे 10 दिन का कोर्स किया.
10 days मेरे को इतना एसेट लग रहा था, 10 दिन सीखूंगा। थर्सडे आफ्टरनून से लंच में गप्पे चालू हो गए कि पार्टी कहाँ करेंगे, फिर ट्रेंड्स कौन से चल रहे, कौन से पब्स है, कितना 150 किलोमीटर ड्राइव पे बीच है, दिस दैट, सिर्फ पार्टी लवर्स है, सिर्फ फन लवर्स है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, थर्सडे आफ्टरनून कैसे तो भी थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा काम करके भाग जाते। फ्राइडे तो सुबह से ड्रेस वेस चेंज, कोई शॉर्ट्स में आ रहा, कोई टी शर्ट्स में आ रहा, ताकि वो मूड बने, बोले वीकेंड वाइब्स आ गई अभी, तो फ्राइडे को वीकेंड वाइब्स आ गई। और सैटरडे संडे तो सवाल ही नहीं, फोन नहीं उठाते, ईमेल व्हाट्सएप सब ऑटो रिप्लाई में चलता है। सैटरडे संडे यू मेल टू एनीवन, आई हैव more than around 65 good friends with whom they are my partners, they are my project partner, they are answerable to me, to my emails, to my WhatsApp. Sorry, they will not, they will just message from now, next 12 days I am on vacation, so you will get an auto reply like this, वो भी भेज देते अपने को। So don't get confused कि thank you for receiving, अपने लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा पढ़ लिया क्या, पढ़ा वढ़ा नहीं है, ये वाला तुमको ऑटो रिप्लाई आने वाला है। This is how they work, और वो हमको यूटिलाइज कर रहे हैं। वो पढ़े नहीं पढ़े, 10वीं रहे 12वीं रहे, दे आर हैविंग फन। इंडिया में तो हैविंग फन को शर्म आती, किसी बोलते कल तूने पार्टी किया, नहीं मैंने पार्टी नहीं किया। क्यों, खाना नहीं खा सकते बीवी बच्चों के साथ? वी आर अशेम्ड ऑफ, हमको जो मैकुलर किया है ना, बाबू बना के रखा है, सिर्फ काम करने का रगड़ के, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, बनेगा तो तू बाबू, क्योंकि हमारी माइंडसेट को वैसा ट्रेन कर दिया, बहुत ही गलत तरीके से किया। उसमें से भी निकालना है, मॉरलिस्टिक्स भी इंप्रूव करना है, पैट्रियोटिज्म इज समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट। how to do all those things। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स हम डिस्कस करेंगे। पॉलिसी कब आ रही है, वो कौन सा, एक इथिकल साइंस का सब्जेक्ट आवर यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड, पीपल बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉट फॉर इट, मेरे को नहीं होना, थर्ड में नहीं होना, फिफ्थ में नहीं होना, सबको भगा दिया। इथिक्स है ना जैसे कि लास्ट ठीक है जिंदगी की, ये ह्यूमैनिटीज वालों की लोग हैं, ये ह्यूमैनिटीज वाले पढ़ाएंगे, वो बोलते नहीं हमारे पास वर्कलोड नहीं, हमारे पास टीचर नहीं, फिर ऐसा करो इसको नॉन ग्रेड का बना दो, फिर ऐसा करो इसको ऑडिट बना दो, फिर और खराब हो गया इसकी एक असाइनमेंट ही ले लो ना और उसको दे दो पूरे में से पूरे। व्हाट रबिश, दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉरल्स एंड इथिक्स इन आवर यूनिवर्सिटी, और आई मीन पैन वर्ल्ड, आई मीन नागपुर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद सीनेट मेंबर हूँ और अभी बोर्ड जाऊँगा, वो बात नहीं है, बट ये मेंटालिटी है हमारी, दिस इज अवर मेंटालिटी। मॉरल एंड इथिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। एंड देन वी आर सीइंग डिजास्टर्स एवरी डे, बट स्टिल वी आर नॉट बॉदर्ड कि ये मेरी जवाबदारी नहीं, ये माँ बाप ने संस्कार नहीं किए होंगे, तो वो जो भी है वॉट एवर happens, माँ बाप जवाबदार है। नो, वी बॉय स्टेज 8 to 10 hours in our campus with us, we are more responsible than parents, क्योंकि 8 घंटे सो जाता है, 8 घंटे हमारे साथ रहता है और 5-6 घंटे उसका मी टाइम रहता है, दरवाजा लगा लेता है, तब तो किसी को ही नहीं मिलता, सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन मिलते रहता है, उसके जो 100 दोस्त रहते हैं उनके साथ गेमिंग करता है, तो माँ बाप से ज़्यादा हमारे से ज़्यादा टच में है। सो वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सो अब इसको करना कैसे है, दैट इज द मेन थिंग, अ सिंपल थिंग विच आई हैव डिस्कस्ड, decided and started doing in my college, PIT, otherwise earlier, and then now we are doing in PC also. Simplest thing है, अब मेरे को क्या करना है, हर एक बच्चे का recognizing, identifying and fostering and nurturing his individual competency। अब मेरे को अगर आप में से यहाँ पे सबका मेरे को डिटेल होना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो पूछना ही पड़ेगा, व्हाट इज एल्स, इफ आई वांट कि हर एक की ना मेरे को चॉइस पता चल जाए, हर एक का फेवरेट सब्जेक्ट पता चल जाए, हर एक की फेवरेट स्किल, हर एक का फेवरेट टॉपिक, हर एक की फेवरेट हॉबी, हर एक का फेवरेट फूड, मेरे को 10 चीजें आपसे पूछनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपलेस्ट, सेंड अ गूगल फॉर्म, सेंड गूगल फॉर्म टू एवरी लास्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, सेंड इट, फाइंड इट आउट, ही विल फिल इट। तो क्या 3 चीजें हम लोग मांग लेते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर जो भी है, एंड ड्रीम करियर। फर्स्ट ईयर में ये 3 चीजें मांग लो, पहला पोर्शन खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे को जब पता चल गया ना, अच्छा मेरे को ये भी पूछ रहे, व्हेन वी टेल स्टूडेंट दैट व्हाट इज योर बेस्ट हॉबी, ही सेज माय हॉबी इज कुकिंग, एंड वी से गुड, ग्रेट, you will have a great career, I'll help you, I'll arrange Sanjeev Kapoor for you, I'll arrange lectures from Vishnu Manohar for you, but you will become a great chef, इंटरनेशनल शेफ बनेगा, तू 4 साल में मर्सिडीज खरीद सकता है। ये पैटिंग ऑन द बैक, इंजीनियर है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स, मेकिंग स्टूडेंट्स फेल इन लव with what they do, with what they learn, what they pursue, what they are dreaming of, they should love that। मेरे सपनों को मैं प्यार नहीं कर रहा तो क्या मतलब है, ऊपर से आप मेरे को समझा भी दोगे कि तू कैसे गलत सपने देख रहा है। दिस इज नॉट डन, द डेज आर गॉन, पीपल आर डाइवर्टिंग आफ्टर 10 and 15 years into their professions। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव देन रियलाइज्ड कि अरे यार ये तो करना ही नहीं था मेरे को,
नागपुर मेरे क्लोज फ्रेंड है, who did a career for 15 years, 15 years in IT, गवर्नमेंट का कंप्यूटर साइंस पास आउट, 15 साल नौकरी किया, 15 साल बाद उसको पता चला कि यार आई एम शेफ। मुझे मजा तो उसको वही आती थी, 15 साल में भी वो घर में भी खाना ही बनाता था, रूम पे दोस्तों को खाना बना के खिलाता था, पर वो मेरा प्रोफेशन हो सकता है। मैंने तो गवर्नमेंट VNIT से कंप्यूटर साइंस करने के बाद शेफ बन गया। प्लीज कम आउट ऑफ दिस hierarchies in the education. There are no hierarchies. This is such a stupid thing which we keep in our mind and we bias our students with these hierarchies. हम इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी होंगे, सो व्हाट, हु केयर्स, कितनी एम्प्लॉयबिलिटी है, कितना प्लेसमेंट है, ट्रू प्लेसमेंट क्या है हमारा भी, डजंट मैटर। ये जो बना के रखा ना डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा थोड़ी है, डॉक्टर इंजीनियर ऐसा है ये, इट इज हॉरिजॉन्टल बेस, डॉक्टर इंजीनियर CA लॉयर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट ऐसा है ये। हमने डॉक्टर अभी सर साइंस कॉलेज, आर्ट कॉमर्स मग आर्ट्स, कितना माइंडसेट खराब हो गया मेरा, मैं आर्ट्स को खराब बोल रहा हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाके देखिए, दे आर माई पार्टनर्स, आई एम वर्किंग, आई फ्रिक्वेंटली विजिट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 58 MA कोर्सेस है, 58 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, देयर MBA गेट्स लोवेस्ट पैकेज है 38 lakhs पैकेज है, ये आर्ट्स है। उनसे बच्चे को हम इंजीनियरिंग और मेडिकल में 38 lakhs का पैकेज दे रहे 22वें साल में। दिस इज नॉट डन, सो वी कैन नॉट से। ये हायरार्की के कारण ना बच्चा पागल हो गया है, हम पागल हो गए, पेरेंट्स को पागल कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, साइंस, BSc, BCom, BA, अरे ये वाला जो इंजीनियर बोल रहे हैं ये 10,000 को महंगा है, और ये जो आर्ट्स वाला बोल रहे, इट इज अबाउट स्टूडेंट, इट इज अबाउट क्वालिटी, इट इज अबाउट व्हाट यू आर मेंटोरिंग, it is about how you are promoting, it is about how you are fostering and nurturing them, it is that. Please understand, it's an horizontal canvas, it is not vertical. ऐसा नहीं है ऊपर नीचे, नॉनसेंस है। मैं बता रहा हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के हर एक क्लास टीचर के पास 3 से 4 करोड़ की कंसल्टेंसी तो जूनियर मोस्ट के पास है। आज कौन से इंजीनियरिंग फैकल्टी में है, कौन से कॉमर्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने MBA कॉलेज की बात कर रहे हैं, कौन से मैनेजमेंट कॉलेज में 7-8 करोड़ की कंसल्टेंसी जूनियर टीचर कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये उनके डेसिग्नेशंस है, एंड दे आर 4 crore and 5 crore ग्रांट्स, इंडिविजुअल कंसल्टेंसीज, एंड दैट इज एन आर्ट कॉलेज and that is a science college. You never know, it is not art, science, commerce, it is what we treat, it is what we give them the quality, it is what we make them understand, yes you are good, humanities best है यार, अरे क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट है ना। कोई बोला मैं मरला आर्ट कराया है बेस्ट है, अपन कहते अरे क्या को इंजीनियरिंग किसको भी एडमिशन मिलती, ले ले, अरे मैंने इंजीनियरिंग उससे बड़ा है ये क्यों समझ लिया तूने। तो ये माइंडसेट इतना निकल ही नहीं रहा, जो सर ने बताया ना 70 साल से, वो वाला हमारा इशू है, पर अभी लोग तैयार हो रहे हैं। हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, अभी सबके नाम भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ हमारे MR जैन सर है, रामदेव बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उनकी बेटी मेरी बेटी क्लासमेट्स, उनकी छोटी बेटी मेरी छोटी बेटी वो भी क्लासमेट्स, सो वी रेगुलरली मीट ऑन ये एग्ज़ाम एंड बोर्ड एंड 10वीं 12वीं पेरेंट मीट। तो व्हाट ही सेड, मैं बोला यार बिटिया क्या कर रही, मेरी तो खैर दोनों बच्चे इंजीनियरिंग बन गई पर अपने चॉइस से, बट उनको बोला सर ये छोटी बेटी, नहीं बोले छोटी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको इंजीनियरिंग में नहीं डालना। ही इज प्रोफेसर फॉर 25 years in रामदेव बाबा, एंड व्हाट ही सेड, नहीं यार बड़ी बच्ची क्या था, बोले माई डॉटर वॉज ऑल्सो लाइक दैट। आई सेड माई डॉटर वॉज लाइक मिस फ्रेशर, बैडमिंटन नेशनल, दुनिया भर का पढ़ाई छोड़ के जितने कॉलेज स्कूल में फील्ड थे सेंटर पॉइंट में वो सब करती थी। तो मैंने बोला यार ये इंजीनियरिंग तो कोई भी निकाल लेगा, और सेम हुआ, आज भी IT ज्वाइन कर ली, 3-4 बड़े अप्रेजल हो गए, शी इज एंजॉइंग एंड इनटू ही मैनेजमेंट अगेन, फिर कोर करी, कोडिंग की कुछ दिन, फिर शिफ्ट हो गई अपने आप और मैनेजमेंट में चली गई। इट इज देयर चॉइस। सो ही सेड नहीं यार मेरी छोटी बेटी बहुत होशियार है, उसको मैंने कॉमर्स में डाल दिया बराबर, और ये बड़ी बेटी को ये सब शौक है, डांसर भी है, बोले सिंगर भी है, खेलती भी है, ये सब करना है तो इंजीनियरिंग ही बन सकते, बोले वहाँ सब कुछ करके भी आदमी निकाल ही लेता 4-5 पेपर। सो दैट इज हाउ दे वर्क। ये ट्रू पिक्चर बोलने की भी ताकत लगती है, ये बोलने के लिए भी ताकत लगती है। सो प्लीज डू नॉट हायरार्काइज, ये ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से अगर नहीं निकालेंगे तो हम आपको कभी बच्चों को करियर एडवाइस नहीं दे सकते। सो हमने क्या किया, ये पूरे 1400 बच्चे हैं, 1300 बच्चे हैं अभी फर्स्ट ईयर में, PC का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, PIT में 600-500 रहते थे तो उनका एग्जाम्पल लिया रहता, पर वो आइडेंटिफाई हो गए तो कुछ नहीं, गूगल में उनको सेग्रीगेट कर डाला, सब बच्चों को सेग्रीगेट कर लिया। सेग्रीगेट करने के बाद क्या हो गया, मेरे को तब समझा कि
BE IT, BE BTech AI, BTech मैकेनिकल, BTech CSE, BTech इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, डमका तमका, ऐसे जो some 48 students. Everyone has decided only one target, UPSC. खत्म. 48 बच्चे मेरे पास थे जिन्होंने बोल दिया मैं डिग्री करूं नहीं करूं, BA एक्स्ट्रा एडिशनल कर डालूंगा, MA तो हिस्ट्री में ही करना है. आज तय है फर्स्ट ईयर में कि MA हिस्ट्री करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है. सो व्हाट, आई मीन अपन किस किस को सुधारेंगे, पर उसको मैंने 48 बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया. दे आर डूइंग अमेजिंग. It is called as peer learning. It triggers self learning, lifelong learning and peer learning. मेरे को कोई टीचर में उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ना उनके लिए कोई गेस्ट लेक्चर रखा, ना कोई उनके लिए क्रैश कोर्स चलाया. They are calling great IAS officers from India. They are taking their suggestions. They have arranged for mentoring sessions, and that 48 बच्चा, I will see to it कि 48 में से 40 बच्चे IAS ऑफिसर बन जाए. क्यों नहीं बनना चाहिए? आप रिजल्ट देख लीजिए, आज भी IAS ऑफिसर के रिजल्ट देखो तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर हाईएस्ट इन नंबर. सो फाइन. फिर उसमें निकले करीबन 70 बच्चे निकले जिनको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, रील्स और इसी में करियर करना है. अमेजिंग है. उनको अभी से काम पे लगा दिया, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया. अभी कैसे कितने ग्रुप हो गए? ऐसे 36 ग्रुप्स क्रिएट हो गए. मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो वही क्लास ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिक्स, यही पढ़ा रहा हूँ. लेकिन बच्चे के दिल में एक डाल दिया कि भैया तू जो कर रहा है ना वो एंडोर्स्ड है. यहाँ पे वो प्रिंसिपल को भी पसंद है, वो डायरेक्टर पर्सनल आके तेरा कौतुक कर रहा है. चला ये बच्चों को मैं बुलाया, इनकी अलग अलग मीटिंग लेता हूँ, बहुत मजा आता मेरे को. एवरी इवेंट कॉलेज में जो हो रहा है ना, ये रील वाले बच्चे हजारों रील बना के पूरा वायरल कर डालते कॉलेज को. मेरे काम के है, उनके दम इतना है कि उनकी रील को 1 लाख व्यूज आ जाते. तो ये रील मैं क्यों छोड़ूं? पहले ये रील छुप छुप के बनाते थे, आज वो मेरे डायरेक्टर के केबिन में आके बैठते, सर रील्स दिखा रहे, मोबाइल दिखा रहे, सर इसमें 70,000 70K व्यूज ऑन PC इवेंट, ये जिंदगी में नहीं देखा था. तो ये चालू हो गया, शौक भी पूरा हो रहा, उसको भी मजा आ रहा, उसको तो पैसा भी मिल रहा, उसका चैनल मोनेटाइज्ड है, ही इज अर्निंग आउट ऑफ माय कॉलेज. सो व्हाट एल्स वी वांट? दिस इज आई अंडरस्टैंड बाय रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, fostering and nurturing individual students competency. इंडिविजुअल स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी करना, इसमें कोई तकलीफ होगी? मेरे को कुछ भी नहीं हुई. इसमें सब ग्रुप है यार, कितने कुकिंग वाले हैं, शेफ वाले हैं, हॉबीज वाले हैं, IT प्रोफेशनल्स है, कंपनीज है. एंटरप्रेन्योर में तो कम से कम 50-60 बच्चे. 65 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स, जिनको बनना है या बन चुके. सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की मीट लिया स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर. हाईएस्ट टर्नओवर कितना है? 1.8 करोड़. सेकंड ईयर के बच्चे का टर्नओवर 1.8 करोड़ है. 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद की है, फैमिली बिजनेस नहीं है. सी दैट इज द मैजिक. अब इतने स्मार्ट बच्चे को अपन पकड़ा के कुछ भी समझाएंगे, वो हंसता होगा, कौन से जमाने का टीचर लाया हमारे लिए, इसको इतना भी नहीं समझता. इट इज दैट हैव, यू नो, इट्स अ डिजिटल जनरेशन. द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे हैव वी कैन नॉट इमेजिन. अब इतनी हाई-फाई जनरेशन को जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए बच्चे यूजलेस है. मेरे बच्चे यूजलेस नहीं है यार, तेरा चश्मा गलत है, तूने चश्मा ही काला पहन के रखा, सब काले दिख रहे तेरे को, बच्चा यूजलेस है. बस यानी मेरी जवाबदारी खत्म होगी ना. द मोमेंट आई से मेरे को रद्दी क्लास दिया, सबसे जो थका क्लास था ना, नंबर 1 2 D सेक्शन मेरे को दिया. म्हणजे मैं तो कॉन्शियस क्लियर कि मेरा रिजल्ट 10% भी आएगा तो मेरे को तुमने सबसे रद्दी क्लास दिया था. क्लास कैसे रद्दी हो गया, बच्चा कैसे खराब हो गया, क्यों एडमिशन दिया उसको? और कोई बच्चा भगवान का कचरा पैदा कर रहा है, ऊपर से कीड़े मकोड़े फेंक दिए रास्ते पे? नहीं. एवरी इंडिविजुअल हैज एन ओन टास्क, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आपको नहीं समझ में आ रही तो आपका फेलियर है. इट इज दैट सिंपल एज दैट. नीड टू अंडरस्टैंड, हाई टाइम नाउ दैट अब जब NEP ने इतना फोकस डाला, ये सब चीजों पे NEP ने इतना जबरदस्त फोकस डाला है ना, इंडिविजुअल हर एक की मेरे को वैल्यू है भाई, हर एक की वैल्यू है. और वो हर एक को मैं इंप्रूव करूंगा. करने के लिए मेरे को टीचर नहीं एम्प्लॉय करना है, मेरे को शेफ बुला के उसके क्लासेस नहीं लेना, मेरे को उसको पनीर बटर कॉलेज में थोड़ी सिखाना है, मेरा तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर मेरे को उसको समझाना है कि भैया आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, आई रिस्पेक्ट योर हॉबी, आई रिस्पेक्ट योर ड्रीम करियर, एंड आई विल हेल्प, एटलीस्ट आई विल नॉट बी हर्डल इन योर पाथ. नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस. इवन इतना भी कर लिया ना तो मेरा फर्स्ट ईयर का टारगेट पूरा हो गया. सेकंड ईयर में हम लोग क्या कर रहे, स्टैग्रीगेट कर रहे, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर लर्निंग. बस इतना बोल दो उसको,
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा. एंटरप्रेन्योरशिप वॉज एक्सट्रीमली पुअर, बट अभी बहुत इंप्रूव हो गया है. एंटरप्रेन्योरशिप पहले दिखते नहीं थे. 60 में 5 बच्चे. अभी कल ही मैंने परसों, डे बिफोर yesterday I was in Lovely University, Jalandhar. There I was talking to 250 plus students only on entrepreneurship. डिजाइन थिंकिंग का वर्कशॉप लिया मैंने. डिजाइन थिंकिंग इज एन अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इतना सही है. मैं कितना भी पढ़ते रहता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पूरा नहीं समझा है. सो आई कीप लर्निंग. नीलेश, यू मस्ट हैव हर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप की किताब भी लिखा है. सो आई नो हिम, हिज चॉइसेस. बट इंपॉर्टेंस इज, अब उसने फिजिक्स किया इसलिए उसने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना. इट्स नॉट लाइक दैट. मैं फिजिक्स कर रहा हूँ इसलिए मैंने ग्रीन इकोनॉमी नहीं पढ़ना. मैं 5 साल हो गए फिजिक्स नहीं पढ़ा. सिर्फ पीएचडी की थीसिस चेक कर 13 स्टूडेंट अवार्ड हो गई, अभी मैंने बंद कर दिया सब वो. क्योंकि इट इज नॉट गिविंग मी वर्थ नेटवर्क. इट इज नॉट गिविंग मी बैक समथिंग विच आई कैन गिव बैक टू माई स्टूडेंट. वो वर्थ नहीं मिल रहा और समय खराब हो रहा है. 10 क्या स्टूडेंट रहना क्या 20 रहना का कोई पॉइंट ही नहीं उसको. आई एम स्टडिंग ग्रीन इकोनॉमी फॉर लास्ट 4-5 years एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आई एम गेटिंग. कितने सारे वर्कशॉप्स कर लिए, कितना सारा पढ़ाई हो गया, कितना सारा नया चीजें पढ़ने मिल गया. इट्स अमेजिंग. 18 कोर्सेज कर लिया मैंने पिछले 3 साल में. उसमें के 11 फिजिकल किया यूनिवर्सिटी में जाके बैठ के वहाँ पे 8-8 दिन के, 10 दिन के, 12 दिन के, ऑल आउट ऑफ इंडिया. एक भी इंडिया का कोर्स नहीं किया एक्सेप्ट टिस. टिस हैज गॉट अमेजिंग थिंग एंड एलपीयू. आई विजिटेड एलपीयू. यार क्या कॉलेज, 36,000 स्टूडेंट्स, 8 स्टोरीड बिल्डिंग्स, 50 इन नंबर. 50. और कब का खुला है? 2005 एस्टैब्लिश. and 8 storied building and how many? 50 such buildings. 36,000 students are studying and हमको 2000 की तकलीफ है. 36,000 students के लेबल है entrepreneur group, irrespective of their original branch, AI, DS, MECA, वो सब है वहाँ पे. Engineering is just another school into it and there are another 50 schools. So fine, but the labels are very clear. They have been doing this since years. So just segregating students with respect to choices, with respect to their dream careers and with respect to how उनको बोलना ही मात्र काफी है कि यार तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है. And that is what we expect, that recognizing, identifying. पहला ही शब्द चल रहा है अपना अभी इसी पे हम नहीं कौन सा, हाँ, recognizing, identifying and fostering, इसी पे आए. fostering पे आए नहीं अभी तक. We are not into fostering even, we are only into recognizing. किसी ने क्या कर रहा, हाँ, good. recognizing and identifying. foster करना है तो आपको facilitate करना है. You have to arrange some sessions for them. You have to create practice session for them. You have to create. मैंने कुछ नहीं, जितने म्यूजिकल ग्रुप थे ना उनको बोल दिया 5 से 7 तुम्हारा म्यूजिकल ग्रुप रोज काम करना. ऑडी खुला रहेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट घर से लाओ, जैमिंग चालू है. अमेजिंग है. उनको करना है ना यार, 5 के बाद तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज वेयर वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू देम. सो देन दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग. कॉलेज में कितने, करीबन 3 सिंगर ऐसे जो स्पॉटिफाई सिंगर वेरीफाइड है. स्पॉटिफाई में यू कैन अंडरस्टैंड वेरीफाइड होने के लिए गूगल वेरीफाई, यू अंडरस्टैंड वेरीफाइड राइट. वेरीफाइड इंस्टाग्राम, वेरीफाइड फेसबुक, वेरीफाइड स्पॉटिफाई. ऐप में वेरीफाई करने के लिए कुछ 1 मिलियन वगैरह आपके लिसनर चाहिए. वो उसने ऑलरेडी पिछले साल क्रॉस कर चुका है. वो बच्चा अपने पास AIDS कर रहा है. वो कोई मतलब नहीं है ना, उसके करियर आज ही वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है. मतलब रैंडम कमा रहा है. किसी महीने में 1 लाख कमा रहा है, किसी में 30,000, किसी में 50,000. एवरेज साल में 10-12 लाख कमा रहा है. अब वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को मैं कितना भी सर फोड़ के बताऊंगा, ही विल नॉट डू दैट. आर्टिस्ट, राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स का एक सेपरेट ग्रुप है एंड दे आर वर्किंग ऑन क्रिएटिव राइटिंग ओनली. एंड हाउ मच दे आर राइटिंग? अ बुक दे लॉन्च लास्ट ईयर गॉट 5 स्टार ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon. 5 स्टार रेटिंग में जिसकी किताब बिक रही है, सेकेंड ईयर का बच्चा है, वो एरोनॉटिकल क्या करेंगे? बट हम आज चॉइस बेस नहीं दे रहे. एरो वाले को हम 3 लैंग्वेज लिटरेचर नहीं दे सकते थर्ड ईयर में. हम तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते. आप अभी थोड़ा जेल ऑटोनॉमस हो गया, बाकी जो भी कॉलेज ऑटोनॉमस भी हो गए, फिर भी हम दे नहीं सकते. क्योंकि हमको तो डिग्री भी कंप्लीट करना है. मेरे को 30 सब्जेक्ट तो डिग्री ब्रांच के 30 सब्जेक्ट देना है. AICTE बोल रहा है 80% मेरे को तो वो भी देना है. बट दैट डजंट मीन कि मैं उसके बियॉन्ड नहीं दे सकता. दैट इज व्हाट इज अंडरस्टूड. उसके बियॉन्ड मैं दे ही सकता ना. आफ्टर बियॉन्ड दो सब्जेक्ट आई कैन ऑफ कोर्स गिव देम. सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड बाय ये हो गया. एंड देन थर्ड ईयर व्हाट वी डू इज चॉइस बेस्ड mentorship. Give them choice based mentorship. That is what they was talking.
अटल टिंकरिंग लैब, ये सब आ रहा बहुत जबरदस्त है. 10 करोड़ अटल टिंकरिंग लैब को भी दे रहा. 16 सितंबर कुछ तो भी लास्ट डेट है अभी. 10 करोड़ दे रहा है. टिंकरिंग, आदमी के दिमाग को झिंझी नहीं होना चाहिए. ट्रिगरिंग टू द ब्रेन्स इज समथिंग विच इज गवर्नमेंट इज रिगरसली डूइंग. पढ़ाने और पढ़ने में की प्रक्रिया में कहीं टिंकरिंग होता ही नहीं. पढ़ने और पढ़ाने में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है. आज मेरे को मालूम है, कल तुमको मालूम है, खत्म हो गया. Nothing beyond that, nothing new will come up. New is something which you have not taught. So please see to it that doesn't happen. Then it has strong emphasis on all these things. I'll escape. Point is fourth revolution of education. We are still into first revolution. पहला ही चालू हमारा. मेरा क्लास है और मैं किताब लेके पढ़ा रहा हूँ. मैं इतना सारा पढ़ाऊंगा. ये टॉपिक कोड में मेरे को 2 डेरिवेशन करना है, 3 डिफिनेशन पढ़ानी है, 4 फिगर ड्रॉ करना है. ये क्या है? कंटेंट. ये इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है ये. वो कहीं भी मिलती है, उसको किताब में मिलती है. उससे अच्छा, आपसे 10 गुना बेहतर यूट्यूब वाले हैं जो इतना बढ़िया बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिसकी कोई बराबर ही नहीं है. इन हिंदी, इन मराठी, इन इंग्लिश, इन हार्वर्ड एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन इज लेक्चरिंग एंड मेमोराइजेशन, विच इज गॉन. I mean, it is not to be spelled out. Second generation was internet enabled. तो क्या? It is internet enabled. अभी भी लोग न्यू प्रैक्टिसेस में बोलते हैं हमारी क्लास में इंटरनेट है. सॉरी, मैंने नहीं रहता, टाइम पे लाया रहता, पर वो भी शर्मनाक बात है कि आप 40 साल पुरानी बता रहे चीज. 30-40 years, 1969 we got internet and 80s में we got publicized. तो 80 भी बोलते 22, यानी 40 साल पुराना चीज को हम बता रहे. मेरे लेटेस्ट क्या है? We have internet in class, we have internet laboratories, we use Google and YouTube and all portals like Swayam and अभी खत्म है ये. This is दाल चावल. No one tells after having a food. आप बताते कि आज दाल चावल थी खाने में? आप क्या बताते हो? Desserts you talk about. आइसक्रीम था, ये था, वो था, और maximum you will talk about starters. The mocktails were good and the starters were so good. पनीर टिक्का था, this that. वो था ना, वो अट्रैक्शन है. दाल चावल खाया, आपने खाया भी रहता तो भी nobody talks about दाल चावल. So first 3 are not outdated. Education producing knowledge. 1980, Rajiv Gandhi was prime minister. He got Sam Pitroda there, and then we got a knowledge. शब्दच नव्हता नाही ते इंडियात. We were विश्वगुरु, जो सर ने बताया था, तक्षशिला, नालंदा. सर ने बताऊंगा शायद मेरे आने के पहले. बट ठीक है ना, वो सब भुला दिया हमको. 70 नहीं 150 साल में भुला दिया, 200 साल में भुला दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? लेफ्ट विथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम. नथिंग बियॉन्ड दैट. कुछ नॉलेज शेयरिंग हो ही नहीं रहा. अब वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग करना है. अभी भी कुछ लोग, प्लीज रिमेंबर, अभी भी लोगों को लगा क्या नया क्या है? हमारा तो सिस्टम नॉलेज बेस्ड लर्निंग है अभी. तो आप 30 साल पुराने हो. अगर आपका इंटरनेट अनेबल्ड लर्निंग है तो आप 40 साल पुराने हो. और ये जो चल रहा, असली में जो चल रहा है, वो तो पहला ही चल रहा है. लेक्चरिंग एंड मेमोराइजिंग. आपको समझे ना समझे, आप रट्टा मारो. किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, वो रट्टा मारो, रिप्रेजेंट करो, रिप्रोड्यूस करो into your answer books, you will get 10 pointer. Is education first revolution? So this won't happen. NEP तो चौथे जनरेशन के बाद की बात हो रही है. Fourth revolution is about innovation. Education should produce innovation. मतलब मैंने 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको 11वां चैप्टर आया कि नहीं आया, ये बात है. Innovation is something which doesn't exist right now. अगर कल कोई किसी ने बोला मैंने ये इनोवेट किया, म्हणजे वो आप, मैंने तो परसों ही पढ़ लिया था तेरा इनोवेशन, ऐसा हो सकता है क्या? इनोवेशन नया है, इट इज न्यू. मेरे को ये मैडम ने पढ़ाया था, कैसे पढ़ा सकते? मतलब पढ़ा दिया म्हणजे वो इनोवेशन नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इनोवेशन हैज टू बी न्यू. न्यू प्रोसेस, न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर्स, न्यू गैजेट, न्यू विजेट्स, न्यू मेथड, न्यू न्यू इक्विपमेंट. कुछ तो नया रहे. न्यू स्टाइल, न्यू प्रोसेस, न्यू पेडागॉजी, न्यू लर्निंग सिस्टम्स, न्यू समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट. मतलब देखो, एक फंडामेंटल है. हम क्या कर रहे हैं? मैं 10 चीजें पढ़ा रहा हूं और 10 का असेसमेंट कर रहा हूं और उसको 10 पॉइंटर बोल के बच्चे को होशियार बोल रहा हूं. ये थर्ड जनरेशन ऑफ एजुकेशन है जिसमें कभी कुछ फायदा नहीं होता. क्योंकि मैंने पढ़ाया वाला उसको नहीं आता तब तो फिर तो मतलब बोलने की बात नहीं. मैंने पढ़ाया और उसको आया तब भी कोई बड़ी बात नहीं. मतलब उसने ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत रट्टा मारा है पढ़ाई की अगर जाके. सो व्हाट? दे आर नॉट इनोवेटर्स. इनोवेटर्स विल बी, आपने पढ़ाया, you have raised the curiosity component and inquisitiveness into during your 60 minutes class to the extent that he leaves from your classroom, goes to the Google,
कॉल सीनियर स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड यार सर ने क्या इंटरेस्टिंग पढ़ाया यार, इसको और ढूंढना पड़ेगा. वो उसको मिल भी नहीं रहा, स्टिल ही इज एक्सप्लोरिंग, he is meeting people, he is talking with the senior teachers, senior students, he is talking to his parents and finding, trying and dying, and hunger about that knowledge to seek is something we understand is the triggering of innovation. Innovation तब start होता है जब मेरी तड़प बढ़ जाती है, यार ये क्या होगा, क्योंकि है नहीं ना, वो कुछ है नहीं और वो क्या होगा. This is the inquisitiveness, this is the curiosity which teachers need to raise to the certain extent, and that is where you can start. You can then get relaxed. Don't complete even 50% of your syllabus, doesn't matter if you have done this. क्योंकि आपने 50 पढ़ाया और वो 70 तो घर जाके पढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी उस बच्चे को आपने इतना ट्रिगर कर दिया है, इतना शामिल कर लिया वो सब्जेक्ट के साथ, इतनी दोस्ती करा दिया सब्जेक्ट के साथ कि वो अभी छोड़ने नहीं वाला है. He has planned after your lecture that I'll do post graduation in this course only. ये वाला इंटरेस्ट लेवल हमने डेवलप कर लिया, तो दिस इज समथिंग विच विल वर्क. अदरवाइज फोर्थ रिवोल्यूशन एंड थर्ड रिवोल्यूशन बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. इट इज नॉट दैट. इट इज इनोवेशन विच विल वर्क. इट इज न्यूनेस विच विल वर्क. आई टीच 10 टॉपिक्स, टुमारो 11वां टॉपिक जो किताब में नहीं, वो बच्चा आके क्वेश्चन भी पूछ ले तो समझ लेना कि क्यूरियोसिटी चाबी लग गई है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाला जवाबदारी है फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन विच इवन एनईपी इज एक्सपेक्टिंग. हाउ, कितनी जीव तोड़ा लागेल, कितनी जान डालना पड़ेगा क्लास में ये किसी के दिमाग में डालने के लिए कि प्यार हो गया वो सब्जेक्ट से. यू कैन इमेजिन, अटैचमेंट ही नहीं हो रहा ना. इट इज इमोशनल बिकॉज EQ वी आर नॉट वर्किंग ऑन. अब ये फंडामेंटल तो ठीक है, आई विल नॉट कवर दिस 4 पार्ट्स. आई मीन एनईपी पे बहुत सुन लिया आपने. सो अवर इंटरेस्ट इज पार्ट 2 ओनली, एंड सबसे डिफिकल्ट है पार्ट 4. अदर की एरियाज तो गवर्नमेंट कर रहा है, पूरे विलेजेस में स्ट्रॉन्ग इंटरनेट स्ट्रक्चर ला रहा है, एंड वो adult education कर रहा है. वो अदर फोकस एरिया, तो we are not interested. We are interested in part 2 and we are interested in part 4, which is most difficult, making it happen. And making it happen is in our hands, not in anybody's else hand. ये तो एक स्ट्राइक मालूम है आपको. 240 तक they are expecting. 2 साल ऐसे ही निकल गए. पहला साल सेलिब्रेट किया, दूसरा किया भी नहीं गवर्नमेंट ने. And now government celebrated first year, जून 2020 जैसा स्टार्ट हुआ था, जून 2021 में they celebrated 1 year completion of NEP. And then they got reports from every governing agency and they could see अरे बेकार हो गया, कुछ भी तो नहीं implement हुआ है. And then they rigorously started giving targets to AICT, to UGC, to all everybody, governing boards यानी CBSE mainly, state boards of different states, सबको टारगेट दिया गया कि आपके पॉलिसी में, आपके सिलेबस में, आपके पेडागॉजी में, आपके टीचिंग स्कीम में NEP से रिलेटेड इंस्पायर होके कौन सी चीज़ ली और वो किस पन्ने से ली, इज टू बी मेंशन. APH बुक में काकड़े सर लिखते रहते, वो ब्रैकेट में डालते, दिस इज बिकॉज ऑफ NEP इम्प्लीमेंटेशन. उनको लिखना पड़ रहा है. सहस्रबुद्धे सर को टारगेट था इतना, मतलब दिस PM's इनिशिएटिव ना. सो दे आर वरिंग अबाउट दैट कि यार ऐसा 2 साल निकले, पता चला 20 साल भी निकल जाएंगे, हम बैठे वहीं पे. और ऐसा हो ही रहा है, 70 साल से वैसे ही हो रहा है. 34 साल से तो बनी भी नहीं NEP. सो इट विल गो ऑन लाइक दैट एंड लाइक दैट. तो ये कितना भी कर लोगे, पॉलिसी इज फुल्ली ऑपरेशनल 2040 में भी होगी, तो हमको काम आज ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाना पड़ेगा. क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कोर एसेंशियल. इसमें क्या हो रहा है, वी हैव टू प्लान. नोबडी विद इन दैट 60 minutes ऑफ क्लास विल आस्क यू हैव यू चेंज योर टीचिंग स्टाइल्स. नोबडी इज गोइंग टू आस्क. मेरा इफेक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका नाम मार्केट में लेंगे लोग कि क्या पढ़ाया. ये तो जनरल, दिस यू नो राइट, एंट्री, मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, ये मैं बता नहीं रहा हूं ज्यादा. राइट नाउ दिस इज लाइक एवरी टाइम we try to do something new and then हमको 50 hurdles. नहीं, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मेरे टीचिंग मेथड्स में नहीं है, ये मेरे स्कीम में नहीं है, ये मेरे टाइम परमिट नहीं करता, ये मेरे टाइम टेबल में नहीं है. ऐसे 50 कंडीशंस थे. पैंडेमिक ने बहुत कुछ हमको बदल डाला. इट वॉज थैंकफुली, पैंडेमिक आ गया, बहुत अच्छा हो गया. हमारे कंट्री को और कान पकड़ने वाला कोई था ही नहीं. जूम वॉज देयर, हमने पहली बार जूम यूज किया. गूगल मीट उसके 8 साल से था. माइक्रोसॉफ्ट टीम 10 साल पहले से लोग सारे यूज कर रहे. हमको नहीं यूज करना था. हमको तो ऐसा चमत्कार हो गया कि बाप रे, माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या रहता, गूगल मीट क्या रहता. बट आई मीन थैंक्स टू एवरीवन दैट वी शिफ्टेड, वी एक्सेप्टेड, वी बिकेम कंफर्टेबल and we are confident now enough after 2 years that yes, online is something which we can handle. Online is something on which teaching can be done. Online is something on which students can learn. इतना जो विश्वास बन गया है, उसमें अभी भी कुछ
मन से बहुत रिटायर्ड लोग हैं, रिटायरमेंट मन का रिटायरमेंट 30 साल में भी हो सकता है. नहीं ते चॉक बोर्ड शिवाय मजाच नाही. मेरे को तो वही पसंद, मेरे सब्जेक्ट में तो ये चलते ही नहीं ऑनलाइन. बोले तो कौन से कहाँ का मार्सचा आणला की चंद्रावरचा आणलाय माहित नाही, क्योंकि धरती पे तो कोई नहीं ऐसा सब्जेक्ट जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते. पब्लिक बहाने और एक्सक्यूज के चक्कर में मेरा सब्जेक्ट नहीं जमता, मेरा थियोरिटिकल है, मेरा मैथमेटिकल है. कुछ तो रहेगा यार, कुछ भी नहीं रहेगा क्या, कुछ तो रहेगा. बट देन वी आर फॉर एक्सक्यूजेस, वी आर वेटिंग, डाइंग वेटिंग फॉर व्हाट, ऑफलाइन आ जाए. वो क्लासरूम का मजा अलग है, सब ठीक है भाई. प्लीज डू नॉट गेट आउट ऑफ दैट हाइब्रिड मोड. प्लीज कीप एवरीथिंग ऑनलाइन ऑन. Please keep online on throughout. It is a lottery for students. It is lottery for teachers. Teachers are not understanding, fine. But student को तो मत खराब करो. Student ने online पढ़ना ही चाहिए. Why some student has taken admission into Priyadarshini? Some student has taken into say IIT खड़गपुर. तो उसको IIT बॉम्बे के teachers का पढ़ने का क्यों अधिकार क्यों मारा जा रहा है? उसमें नहीं है ना टीचर. फर्स्ट ईयर पीसी में कितने 22 सेक्शन है. अरे 22 सेक्शन, 22 अच्छे टीचर है क्या मेरे पास मैथ्स के? ऑब्वियसली somebody will get ad hoc. Obviously some classes will get 20 years of experience teacher and some will get 3 year and 2 years of experience. कितना बड़ा डिफरेंस है. वो बच्चे ने क्या कम फी भरी है क्या? वो सेक्शन सी में है कि जे में है कि डब्ल्यू में है, उससे क्या मतलब आ रहा है? सो दी ऑनलाइन ओनली कैन सेव दिस मिक्सिंग एंड डिफरेंस ऑफ क्वालिटी. हाउ? एक अच्छा टीचर छोड़ के जाता है, सीनियर प्रोफेसर छोड़ के गए हमारे यहाँ से अपने सभी सिस्टम से, और उसके जगह हमने एडॉक ज्वाइन किया. एक 18 साल पीएचडी छोड़ के गया, उसकी जगह 2 साल एक्सपीरियंस का टीचर आ रहा है. बच्चों का नुकसान नहीं है क्या? बट इफ दैट जूनियर टीचर इज स्मार्ट इनफ टू टेल देम दैट कम ऑन आई एम स्विचिंग ऑन टू दिस वेरी गुड लेक्चर, और उसको फैसिलिटेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है. एक्सेप्ट दैट यू आर जूनियर, एक्सेप्ट दैट समबडी इज बेटर देन अस, एक्सेप्ट दैट यस दे आर लीजेंड्स. वो पढ़ा रहे यार, चमत्कार कर रहे. फिजिक्स की ट्यूशन फिजिक्स वाला की लगाया तो लोग इंजीनियरिंग जेडबल छोड़ के, मेरे कॉलेज में 2 बच्चे हैं अभी, मतलब हमारे 2 टीचर्स के बच्चे जो फिजिक्स में इतना प्यार है कि जेडबल उनको आईआईटी सब मिल रहा है, बट दे बोथ आर परस्यूइंग ओनली बीएससी इन फिजिक्स. वन गॉट एडमिशन इन आईकर एंड अदर गॉट इन जर्मनी, बट दे आर सो मच फैन ऑफ फिजिक्स. उनको जेडबल सारा स्कूल आ गया, उनको आईआईटी भी मिल जाएगा, पर उनको करना ही नहीं. तो जिसने फिजिक्स पढ़ाया होगा 11वीं 12वीं, सैल्यूट टू हिम. क्योंकि आईआईटी जेडबल का क्लास ही इसलिए लगाया कि इंजीनियरिंग में जाए, और वो बच्चे ने ये सोच लिया आपका 2 साल क्लास लगाने के बाद कि फिर फिजिक्स करना है, जिंदगी फिजिक्स है और मेरे को इंजीनियरिंग में तो गलती से नहीं जाऊंगा. सी दिस इज द मैजिक एंड मिरेकल एंड टीचर कैन क्रिएट इनटू समबडी स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई द वर्थ. सो प्लीज स्टार्ट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन. इट्स अ नेवर नॉर्मल. ये पोस्ट पैंडेमिक न्यू नॉर्मल, नया पुराना कुछ नहीं है. इट इज नेवर नॉर्मल. हम कभी नॉर्मल नहीं होना चाहते भी नहीं हम होना. वी डोंट वांट टू बी नॉर्मल नाउ. दैट वाज सो बोरिंग. आई तो हेट दैट फेज. आई वाज नॉट, आई वुड नेवर अंडरस्टैंड कि मैं 400 वेबिनार, आई एम नॉट सॉरी, नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट 380 वेबिनार्स ले लिया मैंने 18, 19, 20 महीने में. इट वॉज नेवर पॉसिबल. आई वुड हैव फिजिकली फ्लू टू सो मेनी डेस्टिनेशन, 26 कंट्रीज में लेक्चर ले लिया. कैसे जाता था पास, मतलब इम्पॉसिबल था वो. और आई वुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ मीटिंग दोस 50,000 ऑडियंस which I could do only on online. इतना मिराकुलस लॉटरी है ये चीज, ये क्यों हमने छोड़ना? इसको as early as possible every single individual teacher should accept it and start doing something on online. Start at least learning online. प्लीज किताबें मत पढ़ो. बहुत पढ़ लिए, जिसने 5-10 साल कर लिया है ना टीचिंग, वो क्यों किताबें पढ़ के नोट्स बना रहे हो? वॉच वीडियोज यार, वर्ल्ड क्लास वीडियोज एनपीटीएल दे रहा है, स्वयं दे रहा है, कोर्सेरा दे रहा है, एडेक्स दे रहा है, वाई यूडेमी दे रहा है, 380 रुपए में यूडेमी मिल रहा है. वो नहीं कर रहे हम लोग. क्यों नहीं कर रहे? पढ़ो, गेट मोटिवेटेड एंड क्रिएट योर ओन यूडेमी वीडियोस, एंड दैट हैज टू बी टारगेट फॉर एवरी टीचर. पैंडेमिक हैज गिवन एजुकेशन द हाईएस्ट प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग टू द टीचर्स. प्रवीण कुलकर्णी सर है हैदराबाद के, नाम सुना होगा तो, मैकेनिकल के सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाते. एंड व्हाट इज हिज सैलरी? 7 CR, 7 करोड़ रुपए की सैलरी है. 3 सब्जेक्ट पढ़ाते, सुबह 8 से 11. उसके बाद असाइनमेंट चेकिंग के लिए अलग, एग्जाम पेपर बनाने के लिए अलग, ड्राफ्ट करने के लिए अलग, एवेल्युएशन करने के लिए अलग. वो 20-20 लाख 30-30 लाख के टीचर रखे. अन एकेडमी. दिस इज मैजिक.
अगर 35 वर्षाचा मेकॅनिकल इंजिनियर का एक टीचर घर में बैठे बैठे उसका अवतार देखना तुम, टी शर्ट, दाढ़ी नहीं, टी शर्ट, हमको कितना करना पड़ता, कार में पेट्रोल डालना पड़ता, आना पड़ता, ढंग के कपड़े पहनना पड़ता, वॉट एवर सैलरी वी गेट, बिकॉज वी आर बैकवर्ड. We have not realized the lottery which online has given us. Are we ashamed of our teaching? No. You can switch over to Hindi, Marathi, no issues. It is the point that you should teach correct. गलत मत पढ़ाइए, गलत पढ़ाओगे तो पकड़े जाओगे. और गलत पढ़ाएंगे कि हम जिसने 8-10 साल पढ़ा लिया हम गलत पढ़ाएंगे, नहीं, पर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे है. प्लीज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर टीचिंग. इंप्रूव करो उसी बहाने, रिकॉर्ड करो, फिर रिकॉर्ड करो, 3 बार करो, चौथी बार सही आएगा. घर में बैठ के रिकॉर्ड करना है यार. व्हाट्स सो डिफिकल्ट इनटू इट? आई डोंट अंडरस्टैंड. 7 करोड़ रुपए सैलरी 3 लेक्चर की, ये वर्थ है टीचर का. और ये हम कब रियलाइज होगा हमको पता नहीं. फिजिक्स वाला नाम सुना है क्या? अलख पांडे. कितने में अन अकेडमी ने 1200 करोड़ 1200 करोड़ कॉस्ट है यार टीचर की. और हम कौन से लेवल पे क्या काम कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन थ्रू आउट. The day I started this thing, यूट्यूबिंग, जब से मैंने यूट्यूबिंग चालू किया तब से मैंने जिनको मोटिवेट किया वो कितना पैसा कमा रहे. पेठे करके हमारे राहुल पेठे, मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, कितने वीडियो बना लिए उसने? 170 वीडियो बनाए. एक एक टॉपिक की प्लेलिस्ट है. IoT 28 लेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 47 लेक्चर. क्या मेहनत है. और इट विल पे. कैसा नहीं कर सकते यार, कोई कर सकता और हम नहीं कर सकते. 5 साल वाला कर रहा है, हम नहीं कर रहे. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस थिंग. यू नीड टू शिफ्ट टू दिस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स टाइम टू गो नेशनल, ग्लोबल. 10,000 स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर यू. प्लीज अंडरस्टैंड. नागपुर की अगर आपने वो देखी होंगे अपना देठे सर, HRDC, यहाँ पे देठे सर है, वहाँ HRDC, वहाँ रेखा शर्मा मैडम है, अगर आप पहचानते होंगे तो. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में रेखा शर्मा मैडम है. रेखा शर्मा मैडम का एक ही सब्जेक्ट अवेलेबल है सिर्फ स्वयं पे. शी इज अर्निंग लाइक एनीथिंग. एक फूड, तो इतना रेयर है फूड टेक्नोलॉजी के एडवांस कुछ तो भी केमिकल वगैरह ऐसा सब्जेक्ट. हमारे तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके 1 लाख स्टूडेंट तो आज ही अवेलेबल है. हम सब जो यहाँ बैठे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए तो गाँव-गाँव में कॉलेज है. हर सिटी में, हर खेड़े में, हर कॉलोनी में कॉलेज है. उसका हमारा मार्केट तो सोचो. वो मैडम का इतना नैरो टॉपिक है एंड शी इज अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज. और कोर्स चल रहा है, फॉर्मेटिव कोर्स चल रहा है, परफेक्ट एग्जाम हो रही, ये हो रहा. हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो मैडम कर सकती है हम क्यों नहीं कर सकते? एकदम रेयर सब्जेक्ट है मैडम का, जिसके नागपुर में 40 स्टूडेंट है सिर्फ. एक MSc कोई कोर्स है, वहाँ 40 बच्चे, उनके लिए मैडम ने कोर्स बनाए, आज पूरी इंडिया में चल रहा है. दैट इज द मैजिक ऑफ गोइंग ऑनलाइन. प्लीज अंडरस्टैंड. NEP टॉक्स अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. NEP टॉक्स अबाउट गोइंग ऑनलाइन. NEP टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अनलेस वी प्रोवाइड, हु विल प्रोवाइड? फिर हम दूसरे को अगर दिखाते रहेंगे, 60 बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे? और 60 में से अगर 40 इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको होना भी नहीं है, आप उनके मत्थे मार रहे हो अपना प्रेजेंस. कोई पॉइंट ही नहीं है. आपका पढ़ाई कितीतरी खेड्या पाड्यात अशी मुलं आहे जे शोधतात आहे बिचारे. अगर आपका यूट्यूब फ्री मिल गया, यूट्यूब में आप कमाओ ना, पर उसको तो फ्री है ना बच्चे को. तो वो फ्री बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो, कितना बड़ा पुण्य का काम है. मतलब दोनों है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों है. पैसा आप कमाओगे अगर आपका अच्छा व्यूअरशिप मिल जाए तो, और वो बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हो आप. और कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो ऐसे अननोन 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे जिनको आपने देखा भी नहीं है. दिस इज द मैजिक ऑफ यूट्यूब. दिस इज मैजिक ऑफ यूडेमी. हमारे वो नासिक के मेकॅनिकल चे सर, अरे ही इज लाईक किती 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट झाले त्यांचे. एक कोर्स 450 रुपये का. जूनियर पॉलिटेक्निक का टीचर है. एकच विषय घोटला, बढ़िया वीडियो बना दिए. अभी क्या है पैंडेमिक में, 1 साल में उसके कुछ समझो 25-30 हजार व्ह्यूज लोकांनी कोर्स केले. 30,000 इंटू त्याला प्रत्येकाचा काहीतरी 30% शेअर मिळतो. कुछ तो 250 रुपये, 200 रुपये पकड़ो, 200 इंटू 30,000 कमा लिए 1 साल में. और अभी अनगिनत चलने वाला है. वो सब्जेक्ट बेसिक है, ड्राइंग है, मशीन डिजाइन है, बेसिक सब्जेक्ट है जो जिंदगी भर चलने. आज नहीं 10 साल बाद भी कोई मैकेनिकल करेगा तो वही लगने वाला है. करोड़ों रुपए कमा रहे, 30-40 लाख रुपए ऐसे ही कमा रहे, 2 सब्जेक्ट पढ़ा के, एक वीडियो बना के. प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. इसलिए बता रहा हूँ कि कर चुके लोग. इट्स अ ग्लोबल ऑडियंस एंड मार्केट विच यू नीड टू टैप, नॉट दोज 60 स्टूडेंट्स. द मोमेंट यू गेट इनटू ग्लोबल मार्केट, यू विल रिफाइन योरसेल्फ.
You will change your language, you will change your attitudes. You will not be very local kind of thing. You will not take choices, you will not take excuses. You will be very precise, perfect, more than perfect, best, better, best. हम अपना ही वर्जन इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके डिपार्टमेंट के सारे लोग आज वीडियो देखने वाले. द मोमेंट यू विल अपलोड वीडियो ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट, your own colleagues will see, and the colleagues pan world will also see. And if that gets clicked, if your explanation power is good, if your teaching technique is good, I ensure you that you will have some 1 lakh views आराम से, which will encash you to the monetization of channel. अरे कितना कुछ हो सकता है, और हम अगर नहीं कर रहे तो हमारी गलती है. That is one of my teacher, मैथ्स के टीचर सतीश तिवारी, चैनल देख लो जाके. हम भाई उसको भी चालू कराया, अभी 6 महीने पहले नहीं चालू किया उसने. हर मैथ्स का कॉलेज में पढ़ाता है, घर जाके फट से बैठ जाता है, बोले गए बार सर आज का लेक्चर ले लेता हूँ. और ओनली पीसी भी देख लिया, 5 पीसी के फर्स्ट ईयर में 1000 बच्चे, उसके व्यूज देख लेना आप, कम से कम 10 और 15 हज़ार है. मतलब मार्केट के सब बच्चे मैथ्स का टीचर सतीश तिवारी को फॉलो कर रहे हैं. सोचो व्हाट एल्स यू वांट. पैसा नहीं मिला तब भी ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को दिए गए 60 बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे 60,000 बच्चे देख चुके, पढ़ चुके, तारीफ कर रहे हैं. व्हाट अ ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आपको 60,000 बच्चे तारीफ कर रहे हैं और 60 बच्चे तारीफ. 60,000 तो मेरी जिंदगी में नहीं हुए आज तक. हमने देखे, अगर मैंने 30 साल भी पढ़ा लिया, मैंने 91 से पढ़ा रहा हूँ, 91 से आज 31 ईयर्स पढ़ा लिया, साल में कितने बच्चों को पढ़ाया होगा यार? कुछ भी नहीं. वो तो 1 महीने में हो जाता 50,000, 1 लाख, 2 लाख. Please understand the magic of it and start doing this. NEP promotes seriously. So, and those who are from CSE, AI, DS, those who are good at this, make your videos so amazing with effects, with with lot of graphics added to it, with lot of sequencing, with small videos, under videos, video in video, 100 things you can play with. Ready-made softwares are available. If you can do this, I tell you, miraculous shift to your career can happen. NEP implement हो रहा वो अलग है. What you can do, start right now. Start e-content development. Start trying to go international. Internationalization पे पूरा चैप्टर है. NEP बोल रहा है internationalization के बिना कुछ नहीं हो सकता. Why? Because we should be education provider. If we feel that we are good at something, we should provide education to Bangladesh, Nepal, and all other countries. Bhutan, Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, इनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनसे ज़बरदस्त पैसा लो, और हमारे से जो ऊपर है हार्वर्ड, टोक्यो, उनको हमारे यहाँ लाओ. सो अपने हायर के साथ हम टाई अप करके उनका एजुकेशन यहाँ दे के उसको चैनलाइज करो, और हमारा एजुकेशन जिनसे अच्छा है, ऐसे कम से कम 15 कंट्री इंडिया के आजू बाजू छोटे छोटे, उनको हम देंगे. इंडोनेशिया इज दे प्रेज अबाउट इंडिया. उनके लोगों के पास जाओ, दे विल प्रेज यू, and then you can also, the commercialization of education and monetization of education can very easily happen. कितनी मैडम 5 मिनट 10 मिनट? हाँ नहीं कितनी भाई नहीं ऐसा नहीं, सबके भैया पे मत बोल दो, अभी तुमको पकड़ेंगे. वो जोक है ना, वैसा है वो. शेंडे सर को और मेरे को छोड़ देंगे, आपको पकड़ेंगे. तो the point is, please generate, ये 2 वर्ड सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये पूरे स्लाइड के, हाई क्वालिटी एंड सेल्फ मेड ई कॉन्टेंट. कट पेस्ट प्लीज मत करो. कट पेस्ट किए बराबर हो पायरेसी है, इसमें पायरेसी पकड़ी नहीं जाती. इसमें कोई हमको बोलता नहीं कि इतना आपका इतना परसेंट, ये परसेंट वो है नहीं, बट इट विल नॉट हैव वर्थ. मार्केट सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट का है. प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं लगाना है मेरे को, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. आपने वीडियो का, आपका वीडियो का मैं रट्टा मारूं और मैं बोल दूं, प्लेगरिज्म नहीं पकड़ा है, पर उसकी क्वालिटी नहीं रहती ना. आई एम अ सिंगर एंड आई सिंग मेनी सॉन्ग्स ऑन, आई हैव केप्ट रिकॉर्डेड फ्यू सॉन्ग. एक 8 दिन में मेरे को प्लेगरिज्म का नोटिस आ जाता उस कंपनी से. जैसे मैंने कोई भी गाना बोला है विच हैज गॉट राइट्स विथ टाइम्स म्यूजिक, विच हैज मोहम्मद रफ़ी का गाना बोला, वो सारे गामा पे है, मेरे को 10-15 दिन चलता वो गाना. 15 दिन बाद मेरे को नोटिस आ जाती कि सॉरी आपका ये काउंट होगा नहीं. कुछ पनिशमेंट नहीं है थैंकफुली, बिकॉज you can do that, but that not will be counted for your monetization, and your copyrights are reserved. The copyrights are with सारेगामा, copyrights are with something. तो आप plagiarism इसमें निकाल के डालना कुछ नहीं है, but plagiarism रहा तो popular नहीं होगा, ये तय है.
So see to it that you will not copy, paste, add video. Please don't do that. Create your own content and then you will truly enjoy. You can do that. ये तो fundamentals है थोड़े से. I'll skip this. फंडामेंट आई थिंक ये सुबह सब डिस्कस हो गया होगा. 3000 स्टूडेंट अभी तो यूजीसी ने पास भी कर लिया कि 3000 बच्चे जिस भी कॉलेज में है इट हैज टू गो इनटू मर्जिंग एंड मल्टी फैकल्टी ही इंस्टीट्यूट ही रहेंगी. करंटली टीचर्स आर शाउटिंग दैट कोई बच्चा ठीक है ना मेरा कॉमर्स कॉलेज है पर मेरे को उसमें बोलेंगे मेरे को फिजिक्स भी पढ़ना है, तो फिजिक्स के टीचर को मैं हायर कैसे करूँ? और एक दिन थोड़ी 60 पीरियड का एक तो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा. वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं कितना रेम्यूनरेशन दूँ, उसके पैसे कौन देगा, फीस में एडजस्ट होगा क्या, वो क्यों आएगा? अच्छा फिजिक्स का प्रोफेसर मेरे पास क्यों आएगा? या मेरे को यहाँ पे साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट करवाना है, या मेरे बायोटेक के बच्चों को अगर एनवायरमेंटल लॉस पढ़ना है, तो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है सेकंड ईयर में, तो वो लॉयर का बंदा मेरे पास क्यों आके पढ़ाएगा? सो दे आर आस्किंग दैट मर्ज एज मेनी एज कॉलेज एंड फैकल्टी टुगेदर. सो इट विल बी प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ एंड फूड टेक्नोलॉजी. ऐसे ही नाम के कॉलेज रहेंगे. XYZ कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस एंड लॉ, XYZ कॉलेज ऑफ whatever medical sciences, pharmacy and dental. It will not be medical college, it will not be engineering college. बिल्कुल नहीं चलने वाला और वो बहुत ही गलत है क्योंकि चॉइस की बात कर रहे और रिस्ट्रिक्ट इतना छोटे से दायरे में कर रखा है. सो इट विल नेवर हैपन. सो सी टू इट दैट इट विल वी नीड टू गो फॉर ऑल दिस. ये तो गवर्नमेंट कर रहा है, जो गवर्नमेंट कर रहा है ना उसके मेरे को स्टोरी नहीं बताना है. वो आप 66 पेजेस का डाउनलोड कर लीजिए, आपका ग्रुप बना होगा तो NEP में उसमें डाल देना. अभी 60 पन्ने का है, एक काढ़ा डाउनलोड कराने टाकून दे, एटलीस्ट उसको कभी तो भी PDF डाउनलोड करके पढ़ लेगा. इट इज़ वर्थ. कुछ भी पन्ना खोल लो ना तो वर्थ है, इतना वसूल है. तो वो कोई इशू नहीं, वो मैं फंडामेंटल्स नहीं बता रहा हूँ. यस इसको सिर्फ करना क्या? हाँ दिस इज सर भी, यादव सर भी बहुत बात कर रहे थे मॉरल्स, इथिक्स, पैट्रियटिज्म. ये जब तक नहीं है तब तक बच्चा कोई काम का नहीं. अब ये करे कैसे? तो इसमें एक सिंपल यूज जो मैं करते रहता हूँ बहुत सालों से और मैंने कई लोगों से करवाया भी है. What is human values? AICTE is conducting numerous workshops daily. आप लोगों ने भी कुछ किए होंगे, पर वो करना कब, देना कब और कैसे देना, और बच्चों को पढ़ाना कब है. उससे मेरा एक ये बहुत पुराना 3 साल पुराना 4 साल 5 साल पहले का मैंने किया हुआ है. व्हाट इज ट्रू वैल्यूज? अगर मैंने 5 इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज कर लिए, सत्य, अहिंसा, धर्म, लव, साइंटिफिक टेम्पर, सिटीजनशिप वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, लेसन्स, सेवा, ये जो एक बेसिक वैल्यूज है, ये वैल्यूज मेरे को पढ़ाना है. ये वैल्यूज अगर बच्चे में रही, 4 साल में इनकलकेट हो गई तो बच्चा अच्छा होगा. ये सब मालूम मेरे को सब है, मैं करूँ कैसे? आपके मॉरल साइंस की टीचर ह्यूमैनिटीज़ वाली को दे दोगे, और ह्यूमैनिटीज़ वाली को कब टाइम है? उसको खुद के 40 लेक्चर है, तो वो कब और इसका सिलेबस कौन बनाएगा, और ये कैसे पढ़ाया जाए? दिस इज स्किल. दीज आर टू बी इम्बाइब्ड, नॉट टू बी इन्फॉर्मेशन शेअर्ड. असं लिहून नाही ठेवायचं अहिंसा म्हणजे काय, धर्म म्हणजे काय. जे डॉक्युमेंट नाही, ग्रंथ नाही वाचायचे आहे, वो इंजीनियर बन रहा है. हमको बस उसको तरीका बताना है कि हाउ यू कैन बी पेट्रियाटिक, हाउ यू कैन बी फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, हाउ यू कैन शोकेस लव ड्यूरिंग योर बिहेवियरल स्किल्स. बस इतना ही करना है मेरे को कि कैसा करप्शन खराब है तू नहीं करना चाहिए. ये समझाने के लिए ये स्किल बेस्ड है, ये स्टोरी बेस्ड रहता है, ये एग्जाम्पल बेस्ड है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है. दिस इज नॉट टू बी गिवन एंड लर्न. नो, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट इम्बाइबिंग. सो how to do that? So I have done a small thing, I'll share you. अरे थोड़ा बैटरी हो गया, नहीं हो रहा नहीं, पर ये चालू है. ये तो दिख रहा है. हाँ हाँ, सबसे सुपर यानी सबसे कठिन है एक्चुअली वो. बी अ रोल मॉडल. आपके बर्ताव में आपको वो दिन भर देख रहे हैं. आपको कॉलेज में आने से लेके कॉलेज से घर जाते हो, बच्चा सिग्नल पे रुका है, आप सिग्नल काट के निकल लिए, आपको पढ़ रहा है रोज वो. आप कितना भी मॉरल साइंस पढ़ा के उसको नहीं समझा सकते. बोले आपने सिग्नल तोड़ा, भाई आप हेलमेट नहीं पहनते, आप बेल्ट नहीं लगाते, आप 50 चीजें, आप पूरे इमोरल हो. ये आपने दिखा चुके, प्रूव कर चुके दिन भर में. फिर आप ज्ञान पिलाना उनको, हंसेंगे आप पे. आपके बर्ताव में होना चाहिए ना. आपको गलत काम करना है तो बाद में करना, घर में जाके. आप बच्चों के सामने आप कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कि वो खुद को ही आपको ही बोल रहा है कि आप मॉरली तो बिल्कुल डाउन हो, आप इथिकली पुअर हो, यू आर नॉट पैट्रियोटिक, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट. आपको खुद को बोलेंगे. कितना चल रहा है अभी
एलिजाबेथ के फोटो लगा दिए, पागल समझ, RIP, काय का RIP? पूरे 96 वर्ष जगली और जिसकी गालियां भगत सिंह, राजगुरु, हर एक क्या साहित्य थे, राणीचा आदेश आला, राणीचा मार डालो, काट डालो, पूरे पैट्रियोटिज्म खत्म किया इंडिया का, एक एक चीज चोर लिया। कैमिला विल वेयर नाउ कोहिनूर, नॉनसेंस। और उनको हम गदगद, यूके क्या करना है? आई सैल्यूट टू दैट फेलो। सोनाक कम से कम खड़ा तो रहा इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर में। ही कॉन्टेस्टेड, 65,000 वोट्स मिले प्राइम मिनिस्टर में, हार गया, फाइन, पर 65,000 लोग इंडियन को वोट तो दे चुके थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। ग्रेट ग्रेट थिंग टू डू फॉर। पर वो उनकी तारीफ करके हम अलग ही खुश हो रहे, उसका कोई फायदा ही नहीं। ऑल दैट वेस्टर्न इज गुड एंड ऑल दैट इंडियन इज बैड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज वी मेड देम बिग, it's all failure of ours. So either be a role model, or this is a small request to all of you, if you can do this. What I do is, we have a topic codes list 1 2 3 4 5 6, उसमें आपको रोज के टॉपिक कोड में लिखा होगा कंटेंट, यूनिट सब लिखा होगा। उसमें बस आपको एक वर्च्यू, आज मैं ट्रुथ के बारे में बोलूंगा, लव के बारे में बोलूंगा, पीस, हार्मनी, राइट कंडक्ट, नॉल वन, आपको जो भी बोलना 60 मिनिट में 3 मिनिट मी काहीतरी बोलणार आहे वेगळं, विषयाला सोडून, ज्यांनी त्याला संस्कार होणार आहेत। मैं मेरा बच्चा है ऐसा समझ के हम संस्कार करते ना घर में, बच्चा भागते रहता, ऐकत नहीं, देवाजवळ बसत नहीं, काय करत असेल, पर हम पकड़ा के करते ना यार उसको। तो 55 मिनिट 60 मिनिट मत पढ़ाइए, 55-58 मिनिट पढ़ाइए, 56 मिनिट शिकवा, पण 3 मिनिटं त्याला मॉरल सायन्सचा एक तरी डोस देऊन टाका, और वो आप पे स्टोरी है। यू कैन टॉक, यू कैन टेल स्टोरी ऑफ भगत सिंह, यू कैन टेल स्टोरी ऑफ योर ओन सीनियर। अरे पिछले साल एक सीनियर था, गैदरिंग में फैशन शो चल रहा था, क्रिएट स्टोरीज, नो इश्यूज, संस्कार झाले पाहिजे। और उसने कैसा, बाहर से 4 बच्चे दारू पी के आ गए थे, उसने कितना सही हैंडल किया, कंप्लीट नॉन वायलेंस मेंटेन किया, झगड़ा भी नहीं हुआ, सबको बाहर कर दिया, और पीसफुली हमारा फैशन शो चला। एग्जाम्पल सेट। उसको लगता अच्छा मेरा ही सीनियर, नाम भी बता देना, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संस्कार वो होते जो एकदम हैंडी एग्जाम्पल जब देते ना, तब लगता कि यार इसने किया, मैं भी कर सकता हूँ। इट इज लाइक दैट। सो यू हैव टू प्लान इट, यू विल नेवर गेट टाइम ऑफ योर ओन। किती वर्गात ठरवून झालं तर कधी नाही होत। मैं लिख के जाता हूँ कि आज के 3 मिनिट तो ये बोलने वाला हूँ। आज हे सांगणार आहे मी की 11व्या वर्षात आमचे पोट्टे 5वीं पास नहीं होते अपने बच्चे। भगत सिंह 11वें साल में 11वीं मैट्रिक पास हुए थे, 11 ईयर्स एंड 11th मैट्रिक। अगले 2 साल 6वीं में बोल दिया था कि मेरा 11वीं तक पूरा एक पढ़ाई हो गई, बोले टीचर के बाद चले गए, 6वीं में थे, बोले मेरा 6वीं का पढ़ाई नहीं, बोले 11th तक हो गया पढ़ाई। टाइम ही नहीं था ना, ही डाइड एट द एज ऑफ 23। सोचो क्या फास्ट चल रहे थे। MA थे तिलक एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, एक भी दिन कॉलेज जाने को टाइम नहीं था, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ। तो ये वाले जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं ना, ये स्टोरीज, ये पैट्रियोटिज्म, अगर आप हिस्ट्री के पकड़ के, अब इसको 1 मिनट लगा ना बोलने को, 1.5 से 2.5 मिनट, 3 मिनट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। 3 मिनट्स इफ यू कैन गिव इन एवरी सिंगल क्लास बाय एवरी सिंगल टीचर, कोई मॉरल साइंस इथिक्स की मेरे को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज अबाउट स्टोरीज, इट इज अबाउट इनोवेशन, इट इज अबाउट डायरेक्ट सेटिंग अप एग्जाम्पल्स। और आप अपने कॉलेज की बताइए, मैंने बताया अभी बच्चों को भी 1.5 करोड़ 1.8 करोड़ उसका टर्नओवर है, आपका 3rd ईयर का बच्चा है, जाके मिल लो, पूछो उसको कैसा 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। एंड ही इज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, कोई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, एग्जाम्पल है ना, डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दो। सो दिस यू कैन डू। सो आई हैव ट्राइड दिस थिंग। और अगर अपने आपके ऐसे 40 टॉपिक कोड है या 50 टॉपिक कोड है और ऐसे 6 सब्जेक्ट है, तो 300 डोजेस of morals and ethics given into different flavors, different colors, by different teachers, into different contexts, into different situations, into different role models. I tell you, a generation will change if it happens. If it happens, and it's nothing which बहुत difficult है। हमारी जनरेशन को तो एटलीस्ट बहुत सारी हिस्ट्री मालूम है, अगली जनरेशन को कुछ भी नहीं मालूम। तो इफ यू कैन डू दिस, मॉरल्स एंड इथिक्स वाला परमानेंट प्रॉब्लम जो NEP बोल रहा है वो सॉल्व हो जा सकता है। अब गवर्नमेंट जब मॉरल की इथिक्स का सब्जेक्ट निकालेगा, उसमें हम एडॉक टीचर रखेंगे, कंट्रीब्यूटर रखेंगे, वो आएगा नहीं, वो 10 क्लास लेंगे, वो असाइनमेंट सबमिट करके 5 मार्क ले लेंगे, ये धंधा करेंगे तो कभी जिंदगी में मॉरल इथिक्स होने नहीं वाली। एंड वी शुड नॉट प्ले विद दिस फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन वैल्यू, जिसके लिए इंडिया का मार्केट है। वाई इंडियंस आर सो प्रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ आवर मॉरल्स, बिकॉज ऑफ हमारे जीन्स में ईमानदारी। हम बोलते होंगे लोकली कि चोर लोग हैं, लोग ये हो गए, अरे वो सब 2% भी नहीं है।
हमको वी कम अक्रॉस, मेरे को तो आज तक कोई बदमाश मिला ही नहीं, कोई चोर नहीं मिला, मेरे को नहीं सही में मिला कोई चोर, तो जिंदगी में मैं तो करोड़ों लोगों को मिल चुका हूं. तो ऐसा नहीं रहता, जगात 99% लोग चांगलेच आहे और तभी जिंदगी चल रही हमारी. तो ये जनरेशन हमारी है, पर हमारे बच्चों को भी तो ये देना पड़ेगा ना. So see to it that this morals and ethics is to be taken care very easily and you can do it very very comfortably. ये तो मालूम है, model universities will Meru, that you must be knowing. CBCS is fine. Exclusive student activity participation के लिए government is funding like anything. Now it is our responsibility. जैसा R&D खूब होता आदि, 1.5 करोड़ AICTE दे रही, 5 करोड़ दे रही, 2 करोड़ दे रही, DST दे रहा है, वो दे रहा है, वो टीचर को मिलता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, पर बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं मिलता था. अब बच्चों की पर्सनल ग्रोथ के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट, DST, HRD, अटल सब ने दे चुके हैं. तो इसको ग्रैब करना पड़ेगा, बच्चों का उद्धार करना पड़ेगा. So please see to it that, and there are numerous international grants also available for which students can get 1 month internship in US, 1 month internship in London. Please see to it. It is our duty. यार बच्चे को कहाँ से एक्सपोजर रहेगा? ये मेरी जवाबदारी है कि मेरे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट्स गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए बहुत, पर मेरे बच्चों को अगर एक भी नहीं मिला तो क्या फायदा? इफ नन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट बेनिफिटेड विद इवन अ लाख ऑफ रुपीज, देन क्या फायदा उसके 4 साल मेरे पास पढ़ने का? क्योंकि गवर्नमेंट तो करोड़ों चला रहा है. अब जो भी स्कीम है, जो भी तरीका है, जो भी कुछ है, पर मेरे बच्चों को फीस के अलावा, मैं देने वाले पैसे के अलावा जो करोड़ों रुपए प्लान हुए हैं, उसमें से मेरे बच्चों को 10-20 लाख तो मिले. उसमें क्या है? डायरेक्ट इंटर्नशिप से, डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने मिल रहा है, डायरेक्ट आपको, यानी MSME सेंटर्स भी, जयपुर का MSME सेंटर है, वहां पे नागपुर के कितने बच्चे जाके पढ़ रहे हैं. इतनी हायर एंड लेबोरेटरीज है, वो एक्सपोजर हम दे ही नहीं सकते अगले 10 साल हमारे कॉलेजेस में. और जब गवर्नमेंट पे कर रहा है, टिकट्स दे रहा है, अकोमोडेशन फ्री कर रहा है, फ्लाइट टिकट दे रहा है, हैकाथॉन्स में इतना पैसा खर्चा कर रहा है, फुल्ली फंडेड हैकाथॉन्स है सारी, क्यों नहीं करना हमने? It is our responsibility for our students that we must give them international exposure and industry exposure. हम एक सब्जेक्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर, ये कर, वो स्टोरी कभी नहीं चलने वाली. जब तक उसमें हेवी पैसा नहीं पंप इन होगा, तब तक बच्चा करने नहीं वाला. बच्चे को बोल दे अमरावती जाके पेपर पढ़ के नहीं आएगा, नहीं करना उसको खर्चा. 500 रुपये टिकट है, नहीं आप दो 500 रुपये, और मैं कितने बच्चों को दूँ? 5 बच्चे, 10 बच्चे? नहीं, मेरे पास 10,000 बच्चे, तो उनको कौन देगा? उनको गवर्नमेंट दे रही है. जैसा अभी तक R&D की इतनी ग्रांट्स थी, वैसा अभी एक्सक्लूसिव इसकी भी ग्रांट्स है. प्लीज सी टू इट दैट वी कैन गेट दैट ऑल दोज थिंग्स. दिस इज अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन व्हिच NEP is saying. टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विल हैव फैसिलिटेशन सेंटर इन इंडिया. और अपनी जो टॉप 10, 20, 50 यूनिवर्सिटीज यहाँ की निकलेंगी, उनको अपने से नीचे वाली कंट्री, एकेडमिकली पुअर जो कंट्री हमारे से नीचे, उनको वहाँ ऑफशोर सेंटर्स देंगे. तो हमारे इंडियन, हमारा प्रियदर्शनी का सेंटर हम भूटान में आज भी खोल सकते हैं. बहुत कंफर्टेबली पीपल विल एंजॉय एंड वी कैन चार्ज वेरी हेवी फीस देयर. और सिस्टम रेडी है, अभी कुछ भी नहीं ऐसा कि कोई गवर्नमेंट का बैन कर रहा हमको. हम आज जाके कॉलेज केनिया में खोल सकते हैं, नायरोबी में खोल सकते हैं, नाइजीरिया में खोल सकते हैं. कॉलेज खोलो तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो सिलेबस है, जो टीचिंग मेथड है, वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते. और US और UK उनको जम नहीं रहा. तो इसलिए बहुत कंफर्टेबली इंडिया को मौके है कि हम लोग हमारा एक्सपांशन करें. NEP इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है, पर उसकी जरूरत नहीं है. अभी जो करंट लॉज है उसमें भी वी आर एलिजिबल टू डू ऑल दैट थिंग. नेक्स्ट, प्लीज सी टू इट दैट यू नीड टू कोलैबोरेट. इसके लिए NEP बहुत बोल रही है कोलैबोरेट नेटवर्क, पर मैं इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकता? एवरी इंडिविजुअल, इफ यू कैन नेटवर्क और कोलैबोरेट, मीन्स व्हाट? अ फ्रेंड ऑफ yours sitting in Delhi, he is working with some organization, maybe industry, institute, whatever. You have to talk, call, he is already your friend. बात करो कि तू क्या काम कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे से कोई मदद लगेगी क्या, सिर्फ तेरी मेरे को मदद मिलेगी तब भी चलेगा. पीपल आर रेडी. गो टू देम, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड. यार मेरे 5 बच्चों को तेरे यहाँ दिल्ली में भेजूंगा, फ्री में अकोमोडेशन कर देगा, डन. साइन कर दो MOU कि हर साल मेरे 5 बच्चों को अकोमोडेशन फ्री देगा IIT दिल्ली में, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में, फाइन. टिकट का हम देख लेंगे AC 382 का, और वो बच्चा 10 दिन टॉप इंडिया की इंस्टीट्यूट में काम करेगा. दिस इज द बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग. और ये एवरी इंडिविजुअल टीचर की जवाबदारी है. ये कॉलेज कितने MOU साइन करेगा, कोई पॉइंट है कि इसमें? कभी नहीं हो सकता. ये मेरे को, मेरे क्लास में 60 बच्चे, उनमें से 10 का भला करना है. सी, द एंटायर फोकस है शिफ्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स टू स्टूडेंट, कॉलेज टू स्टूडेंट, मैनेजमेंट टू स्टूडेंट, organizational benefits, profits to students' profits and benefits.
अगर मेरी सोच में है ही नहीं है, recognizing, identifying individual students' competency, skills and knowledge was never in our agenda, अभी भी नहीं है. जिस दिन ये एजेंडा शुरू हो जाएगा और मैं मेरे एक बच्चे को अगर कहीं यूएस की फेलोशिप करा दूँ, कहीं जयपुर की कोई यूनिवर्सिटी में भेज दूँ, कोई मैं कोयम्बतूर वेल्लोर की एक स्कीम में उसको 15 दिन इंटर्नशिप करनी मिल जाए, कुछ मैं एक एवरी इंडिविजुअल टीचर इफ कैन क्रिएट एंड कमिट योर सेल्फ राइट नाउ, एक तो मैं कर ही सकता. एक भी नहीं किया, जिंदगी क्या बिताया आपने? आपके ग्रेजुएशन में दोस्त नहीं थे क्या? पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं थे क्या? स्कूल में नहीं थे क्या? आपके मामा चाचा कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हम करना नहीं चाह रहे. सो प्लीज सी टू इट. जैसा मैं आज 3 ही कर रहा हूं, एक ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करना इमीडिएट शुरू कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. प्लीज स्टार्ट, प्रैक्टिस इट इमीडिएटली एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग. खराब आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको पढ़. देखो खराब कंटेंट को ना ट्रोल करने के लिए हम कोई रणबीर कपूर नहीं है. खराब वाला अपने आप दब जाता. हाँ, कोई अमिताभ बच्चन ने कुछ खराब बोल दिया तो ट्रोल होगा ना, गाली देंगे लोग, उल्टा सीधा लिखेंगे. हमको पूछ ही कौन रहा है? हमको पहले कोई नहीं पूछ रहा. उसमें हमारा कंटेंट पुअर, उसमें वो मजा भी नहीं आ रही, तो समझ लो गया जमीन में अंदर हो गया. उसको क्यों लोड ले रहे? नहीं मैंने हाँ पाइल टेबल, अरे कोई नहीं देख रहे, खुद तू देखने वाला है क्या? आधा घंटा बहुत टफ है ना कंटेंट. आधा घंटा एंगेजमेंट इज बिग थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. अदर डे अवर सेक्रेटरी मैडम वाज सिटिंग, नानूटी सर 20 मिनट के ऊपर वीडियो मत बनाना. देखो सेक्रेटरी मैडम भी बोल रही है, मैं बच्चों के साथ बैठती बोले तो ना 20 से 25 मिनट के ऊपर एंगेजमेंट नहीं है. आप सारे टीचर को डिफिकल्ट टॉपिक्स बनाने लगाइए. शी वॉज फोर्सिंग ऑन दिस एजेंडा. सर आप कुछ भी करिए, आपको स्टूडियो बना के देती हूँ, आपको क्या करना है करिए, बट सी टू इट दैट आवर टीचर्स मस्ट गो ऑनलाइन. उनके वीडियोस बनना बहुत जरूरी है, पर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए. फिर उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना बोले. अगर आपको 1 घंटा टॉपिक पढ़ाना है तो पार्ट 1 20-25 मिनट का, पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में 1 घंटे का लेक्चर. और ऐसे 2-2 3-3 टॉपिक हर एक टीचर ने. हमने चालू कर दिया है पीसी में रिगरस. अभी कुछ अराउंड 50-60 वीडियो बन गए, 60 वीडियोज आ गए. आपको भी करना है, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट. स्टूडियो का कुछ नहीं, बहुत आसान है. एक रिंग, मतलब सब 5-7 हज़ार की चीज़ है वो. एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. रोज हम एचओडी को बोल रहे 2 लोगों को भेजो, और रिकॉर्डिंग रूम क्रिएट किया. पहले क्या रिकॉर्ड करो बोलते थे, करते ही नहीं थे. तो अभी अराउंड 170 वीडियोज आर रेडी. उसमें से नॉट एवरी वीडियो इज अ लर्निंग वीडियो, बट सम आर अवर स्टूडेंट इवेंट काइंड ऑफ वीडियो. जैसा आपका ये यूट्यूब था, ये अपना खुद का यूट्यूब कर लीजिए. आज जो मैंने देखा, इट इज़ PJLC वीडियो यूट्यूब चैनल कर लीजिए. सो इट विल बी ऑलवेज ऑन योर चैनल. अभी ये किसी पर्सनल नाम से है ना, कोई टीचर का नाम है शायद. सो हाँ, तो वो आप अपने चैनल पे कर लीजिए. जितने प्रोग्राम करोगे साल भर आज से, वो सारे यूट्यूब लाइव कर दो. हो गया आपका यूट्यूब, वैसे ही फ्लरिश हो गया. नए नए लोगों के नाम आ रहे, हैशटैग बनाओ, परफेक्ट बनाओ. आपका साल भर में आपके 200, 300, 500 वीडियो हो जाएंगे. अगर आपने बनाया नहीं तब भी, क्योंकि हर बच्चे का इवेंट है, कोई बच्चों का डांस है, ये हर चीज़ यूट्यूब लाइव. और आपका खुद का यूट्यूब चैनल बना दीजिए. जैसे कैसा PIT का था 5 साल, उसी का नाम चेंज करके PC कर दिया मर्जिंग के बाद. उसमें 60-70 वीडियो थे, 70 और डाल दिए, 140 वीडियो हो गए अभी रेडी. एंड आई हैव अ टारगेट ऑफ सम 200-500 टारगेट है मेरा, कर लूंगा अभी. फिर नॉन टीचिंग टाइम आ गया कि रिगरसली 50-100 वीडियो बना डालेंगे. एंड इट वर्क्स. 8.8 के वगैरह भी है हमारे पास व्यूज. 8,500 व्यूज भी किसी फैकल्टी को आए हुए. 8,500 बच्चों को कब आप आपका टीचिंग दे रहे थे यार? कभी नहीं दे सकते थे. सो प्लीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग में रिगरस जाइए. हर एक टीचर ने एक बंदे से नेटवर्क करना चाहिए. MOU मत लिखो, फोटो मत निकालो, कोई फालतू है, वो कोई मतलब नहीं. मेरे केबिन में एक भी MOU का फोटो नहीं लगा. यू कैन कम डाउन, मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड. एक भी फोटो नहीं है, बिकॉज आई एक्चुअली वर्क विद 23 फॉरेन यूनिवर्सिटीज. 50-15-11 इंडस्ट्रीज में खुद जाता हूँ, खुद काम करता हूँ. फिर उसमें फोटो क्या लगाने का? डॉक्यूमेंट ही अपने पास, पेपर है, साथ में पार्टनरशिप का वो है, कोई जरूरत ही नहीं है. एक एक टीचर अगर एक एक पार्टनरशिप कर ले तो कॉलेज का उद्धार हो जाएगा. उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर आपका जो उद्धार हो जाएगा, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आप जो वहाँ ट्रैवल करोगे, आप ऑनलाइन अभी ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा. सॉरी, अभी तो जूम पे कॉल लेना है, तो जूम पे कॉल करके आप दिल्ली के कोई टीचर से बात कर रहे हैं, गुजरात के, कोयम्बतूर के, अदर स्टेट्स में जाइए, देखिए क्या हो रहा है, करिए कॉन्टैक्ट. एक बंदे का एक स्टूडेंट के लिए भी जोड़ के कुछ कर दिया तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर शेयर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP. आप अपने 10 वीडियो बना दीजिए, आपने NEP का 1 पॉइंट ओके कर लिया. आप अब एक कोलैबोरेशन कर लीजिए, 2 बच्चों का उद्धार कर दीजिए, अपने प्रोजेक्टिव बच्चों का 4, आपने NEP फॉलो कर लिया है. प्लीज सी टू इट दैट व्हाट इज माय शेयर ऑफ डूइंग इंप्लीमेंटिंग NEP इज मोर इंपॉर्टेंट. पॉलिसी कितनी भी 50 आती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. I have been working with this anyway, this is not to be boasted.
but motivated, energized and capable faculty. This motivation happens with change. Every day I tell you, मेरे को तो बोला ना, मैं कर ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, मैं रोज एक ऐसे टीचर, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे कोई भी व्यक्ति से बात करता हूँ जो मेरे से बड़ा है प्रोफाइल में और जो कहीं और है. तो ऐसा सबके पास है, राइट? ऐसा एक तो होगा ना, आपका कोई चाचा ही है, मामा है, कजिन है जो आईआईटी में एचओडी है, जो कोई लवली यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर है, जो कोई वेल्लोर में है, कहीं तो भी हमारे से मणिपाल में है, मेरे से थोड़ा प्रोफाइल में ऊपर और एक्सपोजर में ज़्यादा, ऐसा एक तो व्यक्ति होगा. तो उससे मैं फ़ोन तो कॉल कर सकता हूँ, तेरे यहाँ क्या क्या चालू है, कौन सी ब्रांच में है तू, क्या चल रहा है. आप भले इंग्लिश के होंगे पर आपका वो केमिकल वाला है, तब भी बात करिए. इट इज़ अबाउट एक्सपोजर, इट इज़ अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग एक्सपोज टू न्यू सिस्टम्स. मेरे को इतना मजा आता, मैं कितनी मरी मरी करके ट्रैवल कर रहा, यू कैन नॉट बिलीव. आई हैव विजिटेड लाइक लास्ट 3 दिन बाहर था, 3 दिन में 6 प्लेसेस आई हैव विजिटेड. जालंधर, संगरूर, LPU एंड अमृतसर. क्योंकि इतना लर्निंग मिलता है जिसकी कोई बराबर ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है. 25 साल पहले पीएचडी कर लिया, किसको बताएंगे? वो कोई पॉइंट ही क्या, वो डिग्री का कोई काम ही नहीं. मेरे को डिग्री है, बोलना भी है ना, और उम्र में बड़े ये तो के लिए बोलना नहीं, उसमें सही में कि मेरा किसी का क्रेडिट नहीं है. इफ आई एम सीनियर टू यू, मेरा क्रेडिट है क्या? तुम मेरे बाद पैदा हुए, मेरा क्रेडिट है? पीपल आर सो स्टूपिड, आई टेल यू. मला 22 वर्षाचा एक्सपिरियन्स, शर्म कर क्या है? 35 वाले रहते, 107 साल के भी मरते कुछ कुछ, उसमें कोई क्रेडिट है क्या? मैं किसी से पहले पैदा हुआ. आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल बोस्ट अबाउट देयर सीनियरिटी, नॉनसेंस. आप 2 साल एक्सपीरियंस रही है, आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्या नॉलेज है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस लग रहा नहीं, मैं तो 3 ही साल हुए. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. Don't boast your experiences, don't boast your doctorate degrees and all this, nothing. People should get knowledge, should get those positive educating and learning vibes from you with sitting with you, that is more than enough. वो लोग नाम लेते हैं और डिग्री बता के लेके घूमना पड़ेगा, कितनी बताएंगे? No use. The moment you talk, what an informative person, what a knowledgeable person, what an amazing exposure, what a kind of wisdom he shares. After 32 years into education, if I cannot crystallize my own knowledge as a wisdom to you, then what is the use of my 32 years? I'm ashamed of that 32 years then. 30 साल पढ़ाया, नॉनसेंस, कुछ सीवी मैंने देखे, फाड़ के फेंकने की इच्छा होती. 40,000 पेपर वैल्यूएट किए, बोले पैथेटिक. 40,000 पेपर वैल्यूएट किए, फिर बोले क्लास को नहीं गिन लिया, अच्छा हो गया. साल के 60, 3 सब्जेक्ट, सेमिस्टर 3, मैंने 1.5 लाख क्लास लिया. यू आर पेड फॉर दैट. You cannot tell all these things. वही उसी को पाइल अप करो तो मैं 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया. प्लीज, दैट इज नॉट दैट. Your knowledge, your expertise, your communication, your competencies, your skills, your wisdom, your knowledge should get reflected through the way you express. कोई बात निकली और आपको उस पर बात करते आई, अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज है तो बच्चे मानेंगे, तो टीचर मानेंगे, तो मैनेजमेंट मानेंगे, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू. फिर आप 5 साल वाले कि 3 साल वाले, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा. द मोर एंड मोर वी आर गेटिंग सीनियर, वी आर मोर एंड मोर वी शुड गेट स्केयर्ड अबाउट फीलिंग आउटडेटेड. एंड प्लीज डोंट से ते मला आता समजत नाही, बहुत गलत है, क्रिमिनल है. बहुत टीचर टेक इन प्राइड. हे आजकाल काय इंस्टाग्राम वगैरे मला नाही समजत, ते यूट्यूब फालतू आहे. अरे दुनिया यूट्यूब पे जी रही है, एजुकेशन 90% एजुकेशन यूट्यूब पे हो रहा, यूट्यूब फालतू है. तेरे को सीखने की इच्छा नहीं, वो कम से कम छुपा के तो रख. यू हैव स्टॉप लर्निंग, सो यू आर गोइंग टू बी अ गारंटेड बैड टीचर. प्लीज हाइड इट. डोंट टेल यू डोंट नो इंस्टाग्राम, डोंट टेल यू डोंट नो यूट्यूब, डोंट टेल दैट यू आर नॉट ऑन मीडिया, डोंट टेल, एक्सेप्ट पीपल दैट सॉरी मेरे ना कोणीच मित्र नाही माझे. गलत है, जमाना कोलैबोरेशन नेटवर्किंग का है. डोंट टेल दैट आई डोंट नो एनीबडी. कैसे चल सकता है ऐसा? दिस इज नॉट डन. जमाना बदल गया, वी नीड टू चेंज एंड इट इज फन. आई टेल यू, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना इज एन एंटरटेनमेंट. एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जाओ इज एन एंटरटेनमेंट. एक कॉलेज में हफ्ता भर पढ़ा रहे हो, आधा घंटा किसी इंडस्ट्री जाओ, कोई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही जाके आओ, कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, मजा आ जाएगा. 10 टीचर मिलेंगे, बहुत एनलाइटनमेंट मिलता है. अभी मैं परसों, मतलब जिस दिन गया था उसके एक दिन पहले आई वॉज इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गॉट सो मच एनलाइटन. बहुत सारे नए फैकल्टी है वहाँ पे और इतना मजा आया. 30-40 लोग थे, एनईपी पे ही लेक्चर हुआ मेरा, एंड वॉज अ ग्रेट लर्निंग.
50 चीजें समझा दिए। डोंगरे सर आए अभी नए प्रिंसिपल वहां पे, अभी तक कुमटेकर सर थे, तो उनकी पूरी विजन अलग है, उनका पूरा स्टाइल अलग है, मजा आ गया। तो वो सीखना है, वो इनफॉर्मल लर्निंग अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए आप सिर्फ किताब है, और किताब उनके लिए नई और अच्छी मार्केट में मिलती है। आप सिर्फ किताब हो अगर बच्चों के लिए, तो आपसे बहुत बेहतरीन किताब फुकड़ में मिल रही मार्केट में यूट्यूब पे। सो प्लीज सी टू इट दैट इट इज नॉट डन. Teacher education is going to be a prime agenda, because unless teachers get change, we cannot. We as an institution, we have started developing so many courses. Please design courses. आपको अगर आपका जो डोमेन नॉलेज है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा या उसी फील्ड का कुछ एडवांस अगर आपके पास है, तो प्लीज डिजाइन दोस कोर्सेज, मे बी फॉर 5 years, 2 hours, 3 hours, 50 hours. Please start designing those courses for people, for teachers, for students, for industry, for NGOs, किसी के लिए भी करना चालू करिए, तो एक आपको अलग से प्रोफेशन मिल जाता है. Please do all these things and then you will see, you will have a drastic change in your personality. बहुत बदलाव आ जाएगा, क्योंकि नया पढ़ना शुरू कर दोगे. जैसे नया पढ़ना शुरू किया, हम फिर बच्चे बन जाते हैं, and then you start enjoying things. That is the crust of NEP. We need to learn, we need to change ourselves, and we need to keep updating ourselves. We need to stay relevant. There was already a digital divide between dais and students' chairs. डिजिटल डिवाइड था, और पैंडेमिक में तो हैवॉक हो गया. अगर टीचर वैसे ही रह गया है ना, तो बच्चे आपसे इतने आगे हैं कि यू कैन नॉट कॉम्पीट विद देम. आई टेल यू, दे आर टीचर्स, दे टीच. परसों मैंने कॉलेज में ऐसी एक कॉम्पिटिशन ले लिया था, बच्चों को बोला कितने बच्चे ऐसे हैं, टीचर्स डे पे आई वॉज टॉकिंग, जो मेरे को पढ़ा सकते हैं. मैं 30 साल हूँ, और मैं नहीं, HOD वॉज देयर. ये इनको कल से रोज एक टॉपिक आपको पढ़ाना है 10 मिनट में भी. समथिंग यू शुड प्रेडिक्ट, ये तो मैडम को नहीं मालूम होगा, ये तो मेरे प्रिंसिपल को नहीं मालूम, ये तो टीचर को नहीं मालूम, ये बहुत लेटेस्ट है ना. और ऑब्वियसली हम उतने नेट पे नहीं है, हम उतने डिजिटलाइज नहीं हो गए, हमको टाइम भी नहीं है, हमको अलग भी काम है, पर उनको मालूम है. तो उनको चैलेंज दिया कि रोज आप अपने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक बताइए जो आप मेरे को पढ़ाओगे. बुक लेके कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं फॉरवर्ड करना है मेरे को आप आके बताओगे सर ऐसा ऐसा हुआ है. अभी एप्पल ने जो इनोवेशन किया है, उसमें antennas are getting shifted with the replacement of satellite communication directly. iPhone 14 लॉन्च हुआ परसों, एंटीना रिमूव कर दिया है. एंटीना की बात नहीं है, एंटीना को टावर से लेता है सिग्नल. नाउ दे हैव एडजस्टेड दोज एंगल्स विथ सैटेलाइट डायरेक्ट. तो रिमोटेस्ट जगह जहां पे 10, 15, 20 किलोमीटर जंगल में भी अगर आपका टावर मैच नहीं हो रहा, तब भी यू कैन गेट एन इमरजेंसी सर्विस करके उन्होंने ऑन कर दिया. आप स्विच ऑन करिए, इट विल कैच सैटेलाइट. एप्पल इज अबाउट इनोवेशन. हर रोज ऐसा इनोवेशन लाता वो जो कहीं ला ही नहीं सकता. आज तक किसी ने कभी ब्रेक ही नहीं किया, उनका कोई कोड ब्रेक नहीं हुआ. आप समझो, मैक में आज तक, iOS में आज तक कोई एंटीवायरस नहीं डालना पड़ा. कैन यू बिलीव? दुनिया भर में हैकर बैठे, दुनिया भर में कीड़े डाल रहे उधर, और वहां पे एप्पल के कोई फोन में आज तक कोई वायरस एंटर नहीं कर पाया. दैट इज व्हाट इज इनोवेशन इज ऑल अबाउट. तो यहाँ बच्चे अगर मेरे को भेजना है, ये लेवल का मेरे को अगर ग्लोबल एम्प्लॉयज बनाना है जिनको इतनी समझ रहे, तो उनको एक्सपोजर बहुत देना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट कोर्सेज. दिस इज, आई विल स्किप ऑल दैट. ये सब आपको मालूम ही है, ये सब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है, ये सब बन गया है, अभी ऑलमोस्ट बन रहा है. ये सबसे गरीबी 2.8, 4.2 इनकी देखो, और अपनी क्या है 0.69 GDP. इसका 34 साल पहले जब दिया था ना, 1984 में जब NEP आई थी, सो कॉल्ड NEP, उसमें जो GDP का वैल्यू दिया था वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. और अभी 2020 में हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है. बजट में टाइम ही नहीं है हमारे पास. हम तो फंडामेंटल प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हमारे पास खाने पीने के गड़बड़ है, तो हम कैसे करें? 70% पीपल आर इन हंगर. वैसे कंट्री में एजुकेशन पे पैसा हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है. Now NEP is saying कि नहीं डालना चाहिए, but you can still imagine the figure, they are pathetic. I'll skip all that. Yes, there are huge chances of dilution while implementation for sure. मदर टंग में करना चाहिए, ठीक है. रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग तक अशक्य है. रीजनल लैंग्वेज चलो समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठी थी, पर आज पूना में हजारों लोग माइग्रेटेड है, पंजाबीज, कर्नाटकी, केरलाइट्स, ये वो क्यों मराठी पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? दे विल फाइट. ये हमारा बच्चा
अब अपने ही बच्चे हैं जो पहले से नागपुर के जैसे सेंटर पॉइंट भवन मॉडर्न में है, उनको ढंग से मराठी लिखते नहीं आ रहा अभी, उनको मैं बोल दूं कि मेरा बच्चा अगर कर्नाटक में तो उसको ना तमिल सीखना पड़ता, कन्नड़ सीखना पड़ेगा, कौन करेगा? कन्नड़ में चौथी तक सीखना है. So what we will shout कि sorry we are migrants, I am basically Maharashtrian, my mother tongue is Marathi, I myself, our parents cannot speak Kannada. तो मैं कर्नाटक में काम कर रहा हूँ और जिंदगी भर बेंगलोर में जॉब करूंगा आईटी रहने के कारण, बट आई डोंट वांट माय किड टू लर्न कन्नड़. एज सिंपल एज दैट. वो मेरी मराठी नहीं ठीक से सीख रहा, कन्नड़ कहाँ से सिखाएंगे? आई वांट इंग्लिश एजुकेशन एंड दैट इज राइट. हो गया. ये एक पेरेंट्स फोरम ने बोल देंगे तो आपका जो जितना वो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, कोई नहीं पढ़ता. हमारे घर में बर्तन वाली बाई ये बर्तन बस नहीं, जो लोवेस्ट मतलब इकोनॉमिकली लोवेस्ट है, वो लोग भी बोल रहे नहीं इंग्लिश आला पाहिजे, कॉन्वेंट एजुकेशन होना. खाएंगे कम लेकिन कॉन्वेंट में डाल रहे, उस कॉन्वेंट की लेवल चाहे कुछ भी रहे, नाम तो कॉन्वेंट है. ये स्ट्रगल इंडिया में हो रहा है, ये हमने डेवलप कर दिया फेक पिक्चर. तो फिर वो सिनारियो में रीजनल में इम्प्लीमेंट करना, तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? ठीक है चॉइस दे दो. द मोमेंट चॉइस इज गिवन एवरीबडी विल रन फॉर इंग्लिश. तो हो गया डाइल्यूट. जो मेन फंडामेंटल था रीजनल नहीं होना. फिर चॉइस बेस्ड वही नाटक. फिर मेरा चॉइस बेस्ड में इफ आई बिकम प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स साइंस एंड लॉ, हो गया. अब मेरे को फूड टेक्नोलॉजी का होना, मेरे पास नहीं है, तो ठीक है भाई तुम्हारे क्लस्टर में जो कॉलेज है ना उसी का चॉइस देना, यानी बच्चों की स्टोरी खत्म. अगर द मोमेंट आई रिस्ट्रिक्ट, देयर इज धर्मपेट कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, अब उसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होना, उसको थियरी ऑफ कंपटीशन पढ़ना है, उसको पाइथन पढ़ना है, वो बोलेंगे सॉरी ये नहीं दे सकता, हमारा आर्ट कॉमर्स साइंस मध्ये आम्ही देऊ चॉइस. हो गया चॉइस की ऐसी तैसी. So government can, it will be very very difficult. Lot of flexibility at state level will come. Lot of liberty will be given to boards, college. आज ही दिया है. आज जब फ्रेम हो रहा है सीबीएसई में, जबरदस्त डाइल्यूट कर दिया है. Lot of responsibility is only to teachers within the classroom and lot of responsibility towards academic administrator. If we as a teacher feel that my student should excel as an right enterprising person, a perfect, truly employable person, a person with great knowledge, morals, ethics, patriotism. अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ऐसे निकले, तो इसके लिए मेरे को कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है. मैं मेरे 3 मिनट मॉरल एथिक्स पे दे दूंगा. मैं रोज शाम को एक ऐसे दोस्त को फोन करूंगा, यार मेरे बच्चों को भेज देता ना 3-4. नागपुर में कितनी इंडस्ट्रीज है यार, वो तुम्हारी पर्सनल संबंधों के भरोसे, दोस्ती रिश्ते के भरोसे, अगर 5 बच्चों को आपके 4 क्लास के बच्चों को इंडस्ट्री भेज दे, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग इज टेकन केयर ऑफ. चॉइस बेस में उनको मोटिवेट कर दो, जो मैंने पहले बोला था फॉर्मूला 3 साल का, वो कर दीजिए. सो दीज आर 5, 6, 7 सजेशंस व्हिच आई फील दैट वी डोंट नीड एनी गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर दिस. इट इज आवर विल एंड आवर डिजायर टू क्रिएट अ कॉम्पिटेंट यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड देन इट कैन हैपन. उसके लिए मेरे को अलग से कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच.